Uh, Assalamualaikum everyone. This is Asfar and I'm the program manager at National Incubation Center Karachi. और हमारा segment है NIC Live. We are live every day 11 a.m. to 1 p.m. और हमारे different startup interactions हो रहे थे, different areas पे हम training and development पे काम कर रहे थे for startups and corporations. And today we have a very interesting show. And सेशन की इंटरेस्टिंग होने की वजह ये है कि खास तौर पे पोस्ट कोविड और वैसे भी अदरवाइज भी यंग कंपनीज बिल्डअप हो रही होती हैं, तो उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, उनकी अपनी डिसिप्लिन्स में अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरेबल्स पर काम करना होता है और उनको बड़ा कीनली अपनी टाइमलाइंस मेंटेन करनी होती है. So we have a super expert today. Why I'm calling him super expert? Because he has immense experience in project management, making companies and organizations agile, giving them the best of training. तो आज हमारे साथ हैं we have Mr. Asadullah Chaudhary, who's the founder and CEO of AUC Technologies. He has a vast experience of project management, training, delivery in different organizations, और काफ़ी active हैं on the academic side as well. And he has taught at many universities, many training platforms. Few of the training platforms में हम लोग भी साथ इनके interaction रहा है. So one is always a wonderful learning experience. और हमेशा असद साहब जो हैं, he is very forthcoming कि वो contribute करें. So आज startups और companies क्या सीख सकती हैं. So over to you, Asad Thank you, Aswar. I'm really and thank you for coming. Thank you for inviting me and giving me an opportunity to explain, or basically merge project management for the startup world. Generally, जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक बड़ा ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ये है कि स्कोप जो है वो बड़ा क्लियर होगा, या इनिशियली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हुई थी वो चेता कि आप कोई ब्रिज कैसे बना रहे हैं, कोई रोड कैसे बना रहे हैं, कोई डैम कैसे बना रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग प्लांट आप कैसे लगा रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती रही और आगे बढ़ते रहे, तो अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूटिलाइजेशन है, वो आईटी सेक्टर में और स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है. बट प्रॉब्लम यह है कि हम अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ों को एंड स्पेशली when we talk about something new that is going to be mature in a long run, हम बहुत सारी चीज़ों में टेस्ट एंड ट्राई कर रहे होते हैं और उसमें हमारे पास somehow चूँकि ज़ाहिर है कोई ना कोई स्टैंडर्ड या कोई एक body होती है, तो we try to apply every single item that is available in that book, and that is where the problem lies. Same way when I go into, Aswar knows that I used to go to, the places where people are coming and showing their projects, startup places and other places. But when I go and talk to the people who are developing the project, mostly, young kids, those who are into universities or those who are bringing their projects, the problem is that I find out is they don't use project management at all, or the type of project management information they have is very rudimentary, and that actually hinders the overall situation of seeing the big picture. And this is why I believe that when you learn how to become an entrepreneur or how to develop a product or how to sell a product or how to get a funding, probably series ABC, but the point here is you are looking every aspect in its isolation. And this is where the problem is. When you look things in isolation, what happens is that you try to build the product at first and then try to sell it later and then try to to grow, and then things does not work the way it should be. And that's why we see that the number of failures or number of unsuccessful startup is very high. The point that I find out is that battle is lost before it's fought. This is why problem is. So today I will be focusing on project management concepts and terms, and then I will be using my experience and other experience to guide you that how you can design the project management for yourself, because I cannot or anybody cannot give you the step-by-step guideline. What we can give you is the set of
good practices that you can, you can adopt it and you can implement it. So if you understand the big picture and you see that how the pieces are working together, so it will be easier for all of you to see things and to align it and apply it. So that's what my point is, and that's why I'm here. And generally, to be very honest, I'm very anti slide guy. I don't like to run hundreds of slides. In fact, when I do courses, I run my courses I run with 0 slides. So although today I have a couple of slides, but you will find out that these are no traditional slides where I have to, give you lots of words. I believe in billboard style, concepts and things. And I would request you all, don't wait to that my whole, session is going to end and then you can ask the question. You ask question right away, so that it's going to easy for us to understand and to reflect back. And that's how we look at the whole thing. So without a further ado, I am directly jumping to the first concept, and that is the first concept of project management, where I would say 70 to 80% of project managers are also failed in that area. And they actually seeing, I call them that they are doing the project from a tunnel vision, or a very narrow vision. And this is the same problem that I see when I meet young entrepreneurs, young startup guys or kids, when they talk about me that this is my project and we are going to do this thing, and currently the version is this. But the point is, they are so much fantasized, I would say, or so much in love with their product that they forget that product is secondary. Yes, that's what the point is. Product is secondary. The thing is that the user need is the priority. So rather than focusing more on the product and features and functions and functionality, we need to see that how user is going to perceive it and how user is going to look at it. So in a project management term, when you talk about the project is all about to complete something within time, cost, and scope. Whenever we talk about project, people think that project is the traditional definition of a project is that a project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. This is what the definition is. But when I see things, I say go beyond the definition. What is beyond the definition? Beyond the definition is that whenever you go and talk to project managers, whenever you go and talk to project experts, we say how you are going to measure the project. They say we are going to measure the project within the boundary of time, cost, and scope. Or they can say we are all about focusing on output. And this is where the problem is. You see, this is where we lose the battle before it's fought. You see, whenever we understand the project, one aspect is the product of the project, that what we are going to deliver. But this is one part of the piece. The other part is and then the other end, actually, I would say, is that how your end users are going to use the product of the project and get their market value or get their value. So when I go and talk to people and I say, okay, how your product is going to enhance the life of your customer, how your product is going to help them to do things in a better way, how the product is going to help them to make things in a smarter way or in a lesser time. This is where they don't know the things. What they know is how the product works. What they know is what are the specific elements of the product is. So let me give you one very basic example. As most of the startups are working in a tech industry, let's suppose you come to me right now. I have a problem. I have around 26,000 connections on my LinkedIn, and I want to market them. I want to sell them my training and services. So if I ask somebody that I want CRM, so there would be lots of hands will be raised that we can develop a CRM for you. And they will come to me and they will talk about it, that how they're going to engage the CRM or link or integrate the CRM with the LinkedIn and everything. So what they're selling me is the CRM as a product. What they're selling me is that what are the features of the product, what are the functionalities of the product, what are the the steps that I need to do to add accounts or track accounts or set the status of specific leads and all kind of things. But this is all about product. See, as a businessman, as a user, as a person who want to invest in CRM implementation, to be very honest, I'm not much interested about the products and features and functionalities. What I'm interested is that is CRM is going to help me to increase my sale. So this is where the point is. So what I'm going to ask you is, I don't care what are the functionalities and features. Yes,
they are important, but my focus is how this CRM is going to help me to increase my sale. So if your CRM is going to help me to increase my sale, can you talk about it? Can you give me some specific example that, if I use your system and if I do, process ABC, or if I'm able to, run it like that, the way you're saying to me, then I will be able to, to increase my sale. Like everybody right now, I would say there is a fashion right now that we talked about artificial intelligence. We talk about IoT or big data and whatnot. And, to be very honest, it's not about the technology. Technology is not the end. This is the problem. Technology is not the end. Technology is just the means to reach to the end. So let's suppose if you don't know the outcome, if you don't compare or contrast or explain the means within end, you're not going to win the race. So when I talk to project managers and I say, what is your project, to be very honest, 90% people, they talk about output. You see, output is the product. Output is what you are going to deliver at the end of the project. But the point which most of the people miss is the outcome, that once the output is handed over to the end user, how they're going to use it, what actual benefit they are going to get. So what would be the outcome, that you need to focus on. And this is where most of the people are lacking. And that's why I said that people are talking about that we are so much focused on output, we are so much focused on the the results, we are so much focused on that my product can do this or that. So Asfar, do you have some question for me? There are comments and questions in the Go side ahead, of please, the please. group. Okay, I did not see it. Can you just say it for me? जी वो आना शुरू हो गए वेबिनार चैट पे। तो एक तो ये है कि जाहिर है अरसली आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन ये उर्दू इंग्लिश दोनों में होता है, तो जबान की कैद नहीं है। उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं असद साहब, और हम लोग सारे उर्दू की बात करते हैं, तो उर्दू इंग्लिश दोनों में होगा। बाकी वो एजाज अतर इज आस्किंग, isn't that because you asked for CRM? Had you asked for increasing your reach, social media marketers would have been reaching you. देखिए एक बड़ा पर्सपेक्टिव और फिर अजमल हुसैन कह रहे हैं, isn't it feasible that we should go for tailored customized? वो tailored customized product का पूछ रहे हैं अजमल, और वो दूसरा CRM वाला जो सवाल था, यही दो मेन है। जी जी मैं दोनों एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं CRM वाले का एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एक बड़ा डायलेमा जो है वो दो एंड पे डायलेमा है। एक जो मैंने देखा है वो ये है कि जब हम एज अ डेवलपर और एज अ प्रोडक्ट के तौर पे जाते हैं कुछ सेल करने, तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, और जो सामने वाला होता है वो उसने शायद कोई वर्ड सुने होते हैं। यानी कि एक दफ़ा मैं एक एग्जांपल है, मैं एक कंपनी में एट दैट टाइम आई वाज सेलिंग समथिंग एज अ टेक गाय। तो उन्होंने कहा जी हमें जो है हम रोज़ाना जितने भी लोग हैं उनका डाटा एंटर होता है और उनको हमने कॉल करनी होती है और उन्हें हमने ठीक करना होता है। सो टेक्निकली उसको ये पता था उसको चाहिए क्या इन द सेंस ऑफ द प्रोडक्ट, बट उसको प्रोडक्ट का नाम भी नहीं पता था। मैंने कहा जी इसको CRM कहते हैं। तो आप जो है रोजाना अपने जो डाटा से लोगों को निकालेंगे, उनको कॉल करेंगे, उनको रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर ट्रैक करेंगे कि भाई उन्होंने किस तरह से किया। सो पहली बात तो ये कि आप ये समझ रहे हैं या आपका कंसर्न ये है कि जी वो जाके कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट ले ले या वो जाके कोई चीज़ें ले ले, लेकिन सवाल ये है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स तो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर मैं CRM ही देखूंगा तो मुझे कम से कम भी 40-50 CRM तो मिनिमम मिल जाएंगे, प्लस उसमें ओपन सोर्स CRM भी होंगे। सो पॉइंट ये है कि जब मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ और मुझे अपने आप को सेल करना है या अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो मैं अपनी प्रोडक्ट को फीचर से कभी भी सेल नहीं कर सकता, बिकॉज जो भी आप फीचर दे रहे होंगे वो कोई और भी दे रहा होगा और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ को ऐड कर रहा होगा। तो बेसिकली जब भी हमें कोई प्रोडक्ट की बात करनी है, कोई भी रिजल्ट की बात करनी है, किसी प्रोजेक्ट की बात करनी है, किसी आइडिया की बात करनी है, तो हमने ये देखना है कि वो आइडिया उस टारगेटेड कस्टमर को, उस टारगेटेड यूजर को क्या बेनिफिट दे सकता है और कैसे दे सकता है। ठीक है ना। सो लेट्स सपोज अगर आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि सर आपके जो कनेक्शंस हैं वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपकी सेल में इतना फायदा होगा, एंड दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस।
तो उससे क्या होगा कि मेरी जो लाइकनेस है और जो मेरी अडॉप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, रादर देन ये कि मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करूं या एप्लीकेशन यूज करूं और उसके बाद मैं कहूँ कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आया। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनल रिसर्च देखें और आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं, जो भी चाहे बिग सॉफ्टवेयर की आप बात कर लें, उसमें कितने परसेंट फंक्शंस और फीचर्स लोग यूज करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एक बहुत ही एक कॉमन एप्लीकेशन की बात करें लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो एज अ नॉर्मल यूजर, एज एन एवरेज यूजर, आप उसमें से कितनी फंक्शनैलिटीज यूज करते हैं, कितने फंक्शंस आप यूज करते हैं। लेट्स सपोज अगर माइक्रोसॉफ्ट कहेगा जी ये बेसिक एक्सेल है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए क्लाउड पर है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज मूविंग टू क्लाउड, ये क्लाउड पर है, ये बेसिक फंक्शंस हैं, ये फ्री हैं, ये एडवांस फंक्शंस हैं, इसके यू हैव टू पे फॉर इट एंड देन इट विल हैव टू डू दिस। सो दिस इज हाउ द थिंग्स इज, दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग ऑन। सो प्रॉब्लम ये है कि वी ट्राई टू मेक अ very big, complete, perfect system, and this is the wrong thing. What you need to do is try to solve the basic problem, try to integrate one or two things. If you look into it from this perspective, then you are able to help it. So let's suppose your CRM is not going to help me increase sale directly, but अगर आपका CRM जो है मुझे मेरे connections को integrate कर देता है और वो मुझे email को track करने में help करता है, so at least I have some outcome to look into it, so I can see the results right away. सो पॉइंट ये है कि हम जब भी किसी प्रोडक्ट को देखें तो मैं कहता हूँ कि यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर डजंट मैटर दैट आपका जो कस्टमर है वो आपको क्या बता रहा है, राइट। इससे मैं कहता हूँ द प्रॉब्लम ऑफ अ इंजीनियरिंग माइंडसेट। इनफैक्ट ये हमारे, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमारे पूरे जो हमने एजुकेशन ली है थ्रू आउट द ईयर्स, उसमें हमें ये सिखाया गया है कि आपने जैसे ही प्रॉब्लम आए आपने सॉल्यूशन सोचना है। हालांकि पॉइंट ये है कि आपने सॉल्यूशन ही सोचना, आपने उस सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। तो बेसिकली योर जॉब इज टू फाइंड द प्रॉब्लम बिहाइंड द प्रॉब्लम रादर देन गो एंड फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज इन। तो आपने, अगर आपका कस्टमर आपको बता रहा है सीआरएम चाहिए तो वेल एंड गुड, बट समटाइम्स इफ दे डोंट नो एक्चुअली दे नीड सीआरएम, तो आपको बताना है कि जी आपको सीआरएम चाहिए और उसके अंदर ये एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपका टाइम सेव कर सकता है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, या आपके नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स के लिए बना सकता है। तो बेसिकली आप जब वो आउटकम सेल करना शुरू करेंगे तो उसकी सेलेबिलिटी और उसकी वैल्यू ज्यादा बनेगी। और फिर आप जब प्रोजेक्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखिए ऑब्जेक्टिव, दो बड़े डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे फर्स्ट करें, अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ तो मुझे जो सैलरी मिल रही है या जो मेरा रेम्यूनरेशन है वो आउटकम को यूज करके नहीं है, वो आउटपुट प्रोड्यूस करके। दैट्स वेरी टू डिफरेंट थिंग। सो वैल्यू फॉर मी इज डिफरेंट देन, यानी कि एक ही प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज सीआरएम, अगर मैं डेवलपमेंट कंपनी हूँ, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ, तो मुझे वैल्यू मिलेगी प्रोडक्ट बना के। लेकिन अगर कोई कंपनी मार्केटिंग कंपनी है, कोई सेल्स कंपनी है, तो उसको जो वैल्यू मिलेगी वो प्रोडक्ट बना के नहीं मिलेगी, उस प्रोडक्ट को यूज करके मिलेगी। तो अगर आपको पैसे अर्न करने हैं, अडॉप्टेबिलिटी बढ़ानी है, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा सेल करना है, ज्यादा अपने टारगेट मार्केट तक पहुंचना है, तो आपको यू नीड टू फोकस ऑन आउटकम। दैट इज व्हाई आई से that's my favorite quote, that you focus on outcome and deliver output. Nobody is saying you go and deliver the output, but I'm outcome, but what I'm saying is कि आपने आउटकम को फोकस करना है और अंडरस्टैंड करना है कि कैसे आप उस रिजल्ट को अचीव करते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताऊं, जब मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग स्टार्ट की फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैं पिछले 2004 से 2011 तक आई वाज डूइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर और इंडिविजुअल पीपल। जब मैंने कॉर्पोरेट के लिए किया एंड आई वेंट टू कंपनीज, व्हाट आई फाउंड आउट इज नोबडी वाज इंटरेस्टेड टू गेट ट्रेनिंग फ्रॉम मी, and I was very surprised because from my point of view, I'm the number one. I'm already conducted training for 4,000 people, helped thousands of people to get past PMP, and lots of people were doing jobs in outside Pakistan. So whatever they want, in terms of project management is already there. But when I go and talk to the HR people and LN2 people and other people and find out that organizations need project management, but they don't need to get their people certified technically. What they need is they can solve the projects that they are doing right now. So what I have done is I have changed my product. So now when I go to talk to companies like HBL is my client, Aha Khan is my client, PPL, PRL, Pakistan Suzuki Motors, KE, Pakistan Army, Pakistan Air Force, they all are getting project management from me, and I'm managing and guiding them for project management. But what I do is I don't go and say, hey, this is project management that I'm going to teach you. What I say is, you bring your projects, and I will help you or guide your team to do the project management within these 4 or 5 days, and then I'm able to sell it, and I'm charging the premium amount that I can charge in this market. So the point here is, you go for any product,
any service, any application, any idea that you are so much fascinated about it. Think about that, what would be the utilization, what would be the outcome or value of that product that the end user is going to get, and then translate back. So rather than, start with the output, I would say you should start with the outcome, and then translate that outcome into output. That is how you are going to define the overall project. Yes, project needs to be done within scope. Yes, project needs to be done within time. Yes, project needs to be done within cost. So time, cost, and scope is there. But if you start from output, you are actually starting you're going in a battle with the defeat mindset, and you're going to lose the battle. And that's what I have seen in more than 100 companies, that when they develop projects, they are not, like right now. Okay, as for जी जी somebody क्वेश्चंस, else, क्योंकि वो कुछ ऑब्जर्वेशन, जी please. ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चंस आ रहे हैं. Please. Sayyid Ali Aziz is asking, project manager is more focused towards output or outcome? I think so. You have discussed it. अगर आप उसको और करना Answered it. चाहें. और एक, yes, and Ajmal Hussain पूछ रहे हैं कि sir, thanks for the discussing reply to my question, but what I am pointing out is USP approach in selling, unique selling proposition. और इसके अलावा जो है वो फेसबुक से एक हमारे पास क्वेश्चन आया है, डू यू थिंक project management course is required in every field or is it only for specific field? I think so. ये कुछ Okay, observations आई हैं. it's okay. बीच में देखिए पहले मरजान भी, अंदील भी और उवैस फारूकी तो है ही है यहाँ साथ. इफ आपके भी ध्यान में कोई या कोई और क्वेश्चन आए तो बता दें. जी सर. मैं एक एक करके पहला जो सवाल था आउटपुट वर्सेस आउटकम का. देखिए, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू आर सपोज टू डिलीवर आउटपुट, बिकॉज आपकी सक्सेस आउटपुट पे ही है. लेकिन अगर आप आउटपुट को जब डिजाइन कर रहे होंगे, या आउटपुट के फीचर फंक्शंस को जब आप डिफाइन कर रहे होंगे, या अगर मैं इसको प्लेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टर्म में बात करूं, जब आप अपना स्कोप लेआउट कर रहे होंगे, तो उस वक्त अगर आप आउटकम को फोकस करते हुए अपना स्कोप लेआउट करेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट के या एंड रिजल्ट के सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी इनिशिएटिव कर रहे हैं, वो किसी न किसी कस्टमर को सेल करने के लिए, या कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, या किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए कर रहे हैं. तो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस. सो ये एक जो सवाल था वो ये था. दूसरा जो सवाल आया था वो था जी जनाब यूएसपी के हिसाब से. देखिए, यूएसपी क्या है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग गेम है. जब आप कंपटीशन करते हैं, जब आप कहते हैं कि जी there are lot of products, या there are lot of companies who are giving the same product, so आप कहते हैं कि जी मेरा कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट है. अब वो जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो क्या हो सकता है? जब हम अर्ली बात करते हैं 80s की, 90s की, 2000 की भी, तो हम ये कहते हैं कि जी यूनिक सेलिंग पॉइंट में हम कहते थे हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, या हम कहते थे कि हमारी कॉस्ट बड़ी कम है, या हम कोई एक आध फीचर्स की बात करते थे. नाउ यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है आपके पास, ठीक है ना. और वो डिफरेंशिएशन आपने सेल करनी है. इसको अगर मैं ट्रेस बैक करूं तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में उन्होंने बड़ा अच्छे से डिफाइन किया है कि जी आप जो है वो रेड ओशन स्ट्रैटेजी की जगह ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में जाएं और फोकस करें डिफरेंशिएशन को, और उसको वैल्यू इनोवेशन से सेल करें. सो व्हाट इज वैल्यू इनोवेशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज यूएसपी? वो यही है कि आप जो भी प्रोडक्ट या फीचर डेवलप करके दे रहे हैं, और वो उसके टाइम को कम करेगी काम करने के. लेट्स सपोज अगर मैंने 1000 लोगों को सेल करना है, और वो 1000 लोगों को सेल करने के लिए मुझे 3 दिन लग रहे हैं, तो क्या आपकी प्रोडक्ट वो काम 3 घंटे में कर सकती है? अगर मैं कोई चीज सेल कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे 200 लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी प्रोडक्ट वो 200 लोगों को 50 लोगों में या 30 लोगों में रिड्यूस कर सकती है? सो देन आई एम गुड टू गो. अच्छा, अब सवाल ये है कि ठीक है, अब ऐसी 2-3 कंपनीज और भी हैं जो शायद ये काम कर रही हैं, और आप इनमें से एक और है. फिर आप कह सकते हैं कि जी हमारी यूएसपी या हमारे फीचर का डिफरेंशिएशन ये है कि ये आपको इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, इट कैन इंटीग्रेट विद अदर्स, इट कैन हेल्प यू, तो यू कैन टॉक अबाउट इट. बट द पॉइंट इज, जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को या अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं करते, उसको डिफाइन नहीं करते, और आप अपने आप को कहते हैं कि जी आई हैव अ यूएसपी, तो उस यूएसपी की कोई वैल्यू नहीं बनती. देखें, बात यह है कि जैसे आज एक बड़ा मशहूर कोट है, मैं आपको दे देता हूँ, और इससे मैंने बहुत लर्न किया. और आजकल हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना, एवरीबॉडी इज एट होम, और बड़ी मजे की चीज है कि हर कोई जो है वो इस वक्त फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना बना के शेयर कर रहा है. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको लोग कह रहे हैं जबरदस्त, बहुत अच्छी वीडियो है. अच्छा, बात यह है, ये जुमला मेरा याद रखिएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत इसे कहते हैं ना, हार्ड अर्न लर्निंग है मेरी. ये बीइंग फेमस डज नॉट मीन बीइंग रिच.
ठीक है. So yes, there are a lot of people who are going to be famous. There are people who are being famous. You have thousands or millions of likes on your Facebook, but क्या आप उस knowledge को, उस like को sellable बना सकते हैं? क्या आप उससे जो desired income है वो achieve कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? So there are lots of people, globally जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि people, being famous and being broke is too big. So you don't need to be being famous and being broke. So here यही सेम कॉन्सेप्ट, यही सेम मेंटालिटी आपको इस कॉन्सेप्ट में चाहिए कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को कंसीव करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, हम ट्रेडिशनली बात करते हैं कि जी आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं थ्रू प्रोजेक्ट चार्टर. सो चार्टर इज योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट व्हिच सेज दैट दिस यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग. बट उस चार्टर में भी जो सबसे पहली हेडिंग लिखी जाती है वो डिलीवरेबल की नहीं लिखी जाती, वो स्कोप की नहीं लिखी जाती, वो ये लिखी जाती है कि आपका जो पर्पस है या जो जस्टिफिकेशन है वो प्रोजेक्ट की वो क्या है. सो हम क्या करते हैं कि उस जस्टिफिकेशन में भी डिलीवरेबल फीचर्स एंड फंक्शंस लिखते हैं. सो यू डोंट नीड टू डू इट. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट द जस्टिफिकेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एंड यूजर. दैट आपकी प्रोडक्ट जब उसको हैंडओवर हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट जब ट्रांजिशन होगी, तो वो उसको कैसे यूज करेगा और क्या रिजल्ट वो अचीव कर रहा होगा. सो मैं समझता हूँ कि आप उस रिजल्ट को जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, that is your USP. Otherwise, so there are lot of good products, and they were unique, but people were unable to sell it. So अगर आपके पास बहुत खूबसूरत products का junkyard है और वो बड़ी unique है and people are not saying it, and there is no use for it. So I believe couple of more questions, Asfar or whatever. Please, अगर आप कोई और further questions हैं मेरे लिए इस slide से, तो I'm happy to answer. Otherwise, I will move to the next slide. You can move to the slides अभी हम फिर. Okay, so the first point is कि जब भी आप project को start करेंगे, your startup is you start with outcome and then deliver the outcome. This is the first point. Now the second and very interesting point is कि जब भी हम project management की बात करते हैं, unfortunately लोग project management की life cycle को गलत समझते हैं. एक तो ये है कि जितने लोगों ने project management पढ़ाई है या जितने लोग पढ़ रहे होते हैं वो जो एक ट्रेडिशनल टेक्निकल वर्कबुक यूज कर रहे हैं, जो शायद बहुत से लोगों को ना भी पता हो, बट डजंट मैटर. हम कहते हैं जी प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा, प्रोजेक्ट प्लान होगा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, प्रोजेक्ट कंट्रोल होगा, प्रोजेक्ट क्लोज होगा. So basically, unfortunately, there are a lot of trainers who are guiding this thing. There are a lot of, certified people who are things and who use these terminologies that project is going to be initiated, plan, execute, monitor, control, and close. And this is the wrong concept. And this is not project phases. तो आपने जब भी कोई स्टार्टअप को डिफाइन करना है तो आप उसकी पहली बात तो ये कि आप अभी हम नई नई बातें सुन रहे हैं. कोई कहता है कि जी हमें एजिल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को यूज करना है, कोई कहता है कि जी हम जो है वो लीन के मॉडल को हम यूज करते हैं, कोई कहता है जी हमें डिजाइन थिंकिंग को हमने यूज करना है, कोई कहता है क्या ख्याल है हम ट्रेडिशनल को यूज करना है. पहली बात तो ये कि आप जब अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, तो अब आपको उसको एग्जीक्यूट करना है. उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसकी बैकबोन है वो है उसकी लाइफ साइकिल. तो आप अपने प्रोजेक्ट को बगैर लाइफ साइकिल के तो चला नहीं सकते. अच्छा, ये लाइफ साइकिल चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई कोई प्रोडक्ट हो या कोई इंडिविजुअल हो, उसके लिए वैलिड करता है. लेकिन हमें एज अ स्टार्टअप स्पेशली जब हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें एक हाइब्रिड लाइफ साइकिल की तरफ जाना है. एक जनरल लाइफ साइकिल जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं प्लान ड्रिवन लाइफ साइकिल, कि पहले आप पूरा स्कोप ले आउट कर लें. दिस इज व्हाट आई सी पीपल कि जी हमारा ये स्कोप है, हम पहले पूरी प्रोडक्ट बनाएंगे, हम पूरी चीज को कंप्लीट करेंगे. तो डोंट थिंक टू डेवलप द फुल प्रोडक्ट एट वंस. बाज़ दफा जैसे मैंने कहा कि लोग फीचर्स या फंक्शनैलिटीज को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं. तो आप क्या करें कि आप जो जिसे कहते हैं ना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP, आप एजाइल मॉडल में जाएं, लेकिन एजाइल को आप बिल्ड करें फ्रॉम फेज अप्रोच. तो आप कहेंगे जी मेरा पहला फेज जो है वो ये होगा कि उसमें मैं इतनी एडॉप्शन कर लूंगा या इतनी सेल कर लूंगा या इतनी मार्केटेबिलिटी कर लूंगा. तो आप अनफॉर्चुनेटली जब हम स्टार्टअप को देखते हैं तो वो उनका जो फेज अप्रोच होता है या माइंडसेट होता है या ब्रेकअप्स होते हैं, वो ये होता है कि जी हमारे माइलस्टोन में हमने रिक्वायरमेंट फाइनलाइज कर लिया है या हमारे माइलस्टोन में मैंने ये फीचर बना लिया है. मैं समझता हूँ कि आपको इसको ब्लेंड इन करना होगा कि आप कहेंगे जी कि हमारा पहला फेज है, लेट्स से अ मंथ और 2 मंथ. इस पहले 2 मंथ्स में हम अपने 2 या 3 फीचर्स डेवलप करेंगे और इन फीचर्स को सेल करेंगे. सेल मे बी आप कॉस्ट में कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि कितने लोग आपके उस फीचर को से अवेयर होते हैं, कितने लोग उसको यूज कर पाते हैं, कितने लोग उस पर अपना फीडबैक देते हैं. तो मैं समझता हूँ
कि आपने एक हाइब्रिड लाइफ साइकिल बनानी है, आपको एजिल मॉडल यूज करना है विद इन ईच फेज। सो हर फेज का एक टारगेट है जिसको आपने यूज करना है, नंबर 1। नंबर 2, देखें एक और जो बहुत बड़ा इश्यू मैं देखता हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने भी ये गलती की थी व्हेन आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस। होता क्या है कि हम चूंकि टेक्निकल होते हैं, डेवलपर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, तो चूंकि हम अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं तो हम चीज़ों को भी उन्हीं नजरिए से देख रहे होते हैं। हमारा भी पर्सपेक्टिव वही होता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो जाए, फीचर बहुत अच्छा आ जाए, ब्रोशर बहुत अच्छा बन जाए, चीज़ें। लेकिन हम उसमें जो चीज़ मिस कर जाते हैं वो मिस कर जाते हैं उसके फाइनेंसिस का एलिमेंट, हम मिस कर जाते हैं जो मैंने मिस किया, मार्केटिंग का इवेंट, सेल्स का इवेंट। तो जब आप अपना पहला फेज डिजाइन करेंगे और आप कहेंगे जी इस फेज में हमने जो है वो ये प्रोडक्ट बनानी है, तो उसमें आप कुछ प्रोजेक्ट्स और भी लेंगे, जिसे हम अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ उसको प्रोजेक्ट की नजर से देखते ही नहीं है। आपने कहना कि हम जब हम प्रोडक्ट इसी स्टेज तक पहुंचेगी तो हमारा मार्केटिंग का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, जब हमारे स्टेज इस तरह से बनाएगी तो हमारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो आपने, you're not managing technically one project which is to develop the product. You have other projects to, like, to how to market it, how to sell it, how to make it public, how to mark, how to advertise it. तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये अपने अंदर अलग अलग जो है ना वो प्रोजेक्ट्स रखते हैं, और आपके पास कोई, आई वुड से देयर इज नो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हेयर टू देयर। जनरली जब हम बुक्स में देखते हैं तो वो कहते हैं दिस इज अवर करंट स्टेट, उसको यहाँ पे जो है वो आपका बॉटम लेफ्ट पे दिखाते हैं, एंड देन वी से कि दिस इज अवर फ्यूचर स्टेट, और इसको जो है वो टॉप राइट पे दिखाते हैं, हम कहते हैं कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज गोइंग फ्रॉम करंट टू द फ्यूचर एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, लाइक इट्स अ स्पेसशिप इज गोइंग अप और व्हाटएवर, बट द पॉइंट इज देयर इज नो स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, देयर आर मल्टीपल लाइंस एंड यू नीड टू लुक इनटू इट एंड ट्राई मल्टीपल थिंग्स। सो बेस्ट ये है कि आप एक फेज ब्लॉक करें और उस फेज के अंदर प्रोडक्ट को डेवलप भी करें, उसकी मार्केटिंग भी करें, उसका सेल्स भी करें, उसका एडॉप्शन भी लें, and then you will find out कि जी वो क्या कर रहा है। So you are not focusing straight away in a one linear model. There is no linear model. In fact, अब तो जब आप टेक्निकल प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि हर कोई बात कर रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। इंटरेस्टिंगली जैसे एक बैंक की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो उन्होंने कहा कि जी हम जो है मोबाइल ऐप बनाते हैं। सो एवरीबडी इज वेरी मच इन लव विद डेवलपिंग द मोबाइल ऐप्स। तो मोबाइल ऐप बना ली उन्होंने। अच्छा जी, मोबाइल ऐप बना ली, मोबाइल ऐप और बड़ा उन्होंने मार्केट किया और पूरा अखबार में ऐड दिया और सब कुछ हुआ कि जी हमने मोबाइल ऐप बना ली है, इट्स वेरी गुड और इट विल सॉल्व यू दिस दैट। And then after some time I got a chance to meet the CEO and other people, and I say, how's your digital transformation working? They said, we are not getting the results. The problem is, मैंने कहा जी आपने मोबाइल ऐप क्यों बनाई थी? उन्होंने कहा जी इसलिए कि ये लोग यूज करें। मैंने कहा एक्चुअली इससे होगा क्या? तो उन्होंने कहा जी हमारे जो लोग ब्रांचेस में आ रहे हैं वो ब्रांचेस में ना आए और वो ट्रांजेक्शन हमारी जो है वो ब्रांच में ना हो, वो लोग मोबाइल ऐप से करें। तो मैंने कहा अच्छा आपने जो प्रोजेक्ट मैनेजर है क्या ये उसकी जिम्मेदारी है या आपने उसको जिम्मेदार बनाया है कि वो ये ट्रैक करे कि ब्रांच का फुटफॉल कम हुआ है या नहीं हुआ? एंड अनफॉर्चुनेटली ये तो किसी ने बताया ही नहीं। सो जिसको प्रोजेक्ट दिया आपने उसको तो आपने कहा कि जी आप मोबाइल ऐप बनाओ, उसने तो मोबाइल ऐप बना दी। तो उसकी जो सक्सेस है, उस प्रोजेक्ट मैनेजर की सक्सेस है, वो ये है कि मेरी मोबाइल ऐप जो है उसके फीचर्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी एरर नहीं है, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, आईओएस पे, एंड्रॉइड पे, टैबलेट पे रन हो रही है। तो कहेगा कि जबरदस्त, माय प्रोडक्ट इज परफेक्टली फाइन। बट एट द एंड ऑफ द डे सीईओ विल से कि जी मैं तो ये देखूंगा कि ये इससे मेरा ब्रांच का फुटफॉल कम हुआ ही नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को उसका रिस्पॉन्सिबल ही नहीं ठहराया, आपने उसकी जिम्मेदारी नहीं दी, उसने तो अपनी प्रोडक्ट बना के ऑपरेशन को दे दी। लेकिन जब आप स्टार्टअप रन करते हैं तो आप ही होते हैं जिसने जो है, आपको किसी से अथॉरिटी चाहिए नहीं होती। एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये इशू है, एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में पावर स्ट्रगल है, एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का जो है इशू है कि जी प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी नहीं होती है, या अगर होती है तो उसकी अथॉरिटी वहां तक होती है जहां तक वो प्रोडक्ट डेवलप करा के दे देगा। लेकिन जब आप एक एज ए स्टार्टअप मैनेजर के तौर पर लीड कर रहे होते हैं तो फिर आपकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, फिर आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती है, बिकॉज आप खुद ही हैं जो अपने आप को अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे, पावर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप अपने स्टार्टअप को एंड टू एंड सक्सेसफुली देखना चाह रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अडॉप्ट हो, तो जो आपने उसकी लाइफ साइकिल बनानी है, जो उसके फेजेस बनाने हैं, हर फेज के अंदर आपने जो है वो आइटरेशन चलानी है, एजाइल चलानी है। तो यू आर रनिंग, आई वुड से आप ये समझें कि आपकी
जो प्रोडक्ट है अगर आपने 6 महीने 1 साल का टारगेट रखा है तो उसमें उसकी 4 जो है ना रिलीजेस आएंगी, और आप भी कहेंगे जी रिलीज आने के बाद काम खत्म नहीं हुआ। मेरी रिलीज, तो आपकी रिलीज की डेफिनेशन डिफरेंट होनी चाहिए। आपकी रिलीज की डेफिनेशन ये है कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो बेसिक फीचर बन गया, सेल हो गया, अडॉप्ट हो गया, यूज हो गया, और रिकमेंडेशन या थ्रो आउट आ गया मेरे पास, एंड देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन एंड देन दैट्स अ न्यू रिलीज फॉर यू। तो आप अगर एक ट्रेडिशनल मार्केट में देखते हैं, एक स्टैब्लिश मार्केट में देखते हैं, तो उसकी रिलीज 7 साल 2 साल के बाद एक नई प्रोडक्ट रिलीज आएगी। लेकिन जब आप स्टार्टअप है तो प्रॉब्लली 2 महीने बाद आपकी, 3 महीने बाद आपकी नई रिलीज आ रही होगी। और हर रिलीज से जब आप अगली रिलीज पे जाएंगे तो वो ये नहीं होगा कि प्रोडक्ट में कौन सा नया फीचर ऐड करना है, वो ये होगा कि कस्टमर का फीडबैक क्या है, और उस फीडबैक की बेसिस पे मैं अगले रिलीज में क्या फंक्शन रखूंगा, क्या सही करूंगा, क्या मैंने वाकई नए फंक्शंस देने भी हैं या खाली उन्हीं फंक्शंस की परफॉर्मेंस को और चीजों को चेंज करके देना है। सो इफ यू आर नॉट डिजाइनिंग, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड, आई एम नॉट सेइंग टू to create a life cycle or to use a life cycle. What I'm saying is here design a hybrid life cycle because that's very critical. इनफैक्ट मैं भी अब कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, कुछ चीज डिजाइन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अच्छा यार इसमें मैंने करना कैसे। यस, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसमें मुझे जो है वो जब तक पूरी प्रोडक्ट नहीं बन जाएगी तब तक आई कैन नॉट स्टार्ट मार्केटिंग, लेकिन मैं उसमें भी बेसिक वर्जन बना के लोगों का फीडबैक ले लेता हूँ। तो हमेशा ये होता है कि मैं कोई एक पार्ट, कोई एलिमेंट डिजाइन करके, कुछ इसका माइनर वर्जन डिजाइन करके I ask the feedback. So at least probably अगर I'm not selling but I'm getting feedback, और मेरे फीडबैक का मतलब है अराउंड 100 पीपल। सो अगर मुझे 100 लोगों का फीडबैक आता है देन आई गॉट सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है, वो 5 लोग 10 लोग नहीं है जो मेरे दोस्त हैं या जो मेरे ऑफिस के कोलीग्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट कहना ही है कि हाँ ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपने अपनी प्रोजेक्ट की जो फेजेस हैं उसको बड़ा आपने जो है ना टेक्टफुली डिजाइन करना है, और आपने देखना है कि हर फेज में डेवलपमेंट कितनी होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, सेल्स का पर्सपेक्टिव कैसे होगा, फाइनेंस का पर्सपेक्टिव कैसे होगा, एंड देन हाउ दैट्स गो। जब आप फंडिंग की तरफ जाते हैं तो इनिशियली जो आइडियली मैंने पढ़ा है वो ये है कि आप आइडिया से ज्यादा उसकी एडॉप्शन को सेल करते हैं। तो अगर आप कहते हैं मेरे पास ये आइडिया है, तो दुनिया में हर एक के पास आइडिया है। सो अगर आप क्लोजली कीनली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसने भी अपने आइडिया का पहला वर्जन बना के 200, 1000, 500 लोगों को सेल करके उसकी फंडिंग ली है, दे आर मोर सक्सेसफुल वर्सेस दोज हु बिल्ड अ प्रोडक्ट एंड देन दे आर इन द मार्केट दैट वी नीड द फंड। यस, देयर मे बी सम ऑप्शन, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन मसला क्या है कि हम जो है ना वो 20,000 के सैंपल्स में से 5 लोगों की बात कर रहे होंगे, लेकिन वो जो बाकी हमारे पास जो है वो 19,995 लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला, उसकी कोई बात नहीं कर रहा था। हम उन 5 की बात कर रहे थे जी, ये देखें ये सक्सेसफुल हो गए, इन्होंने ऐसे कहा था। लेकिन वो जो बाकी 19,995 लोगों ने किया था वो क्या हुआ, उसको क्यों नहीं देख रहे आप? सो व्हेन यू लुक एट दैट पर्सपेक्टिव, दिस इज हाउ इट वर्क्स। जैसे अक्सर मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं जी बिल गेट्स ड्रॉप आउट है, आपका मार्क ज़करबर्ग ड्रॉप आउट है, एबीसी ड्रॉप आउट है। तो मैं कहा यार ये सब ड्रॉप आउट है वेरी गुड, मुझे ये बताएं कि इन लोगों ने अपनी कंपनीज में कितने ड्रॉप आउट्स रखे, कितने एम्प्लॉइज इनके जो है वो ड्रॉप आउट्स हैं। दैट्स अ बिग थिंग you see, and then this is how proof is in the pudding. So point ये है कि आपको वो पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि चीजें कैसे होती हैं। और दूसरा मैं एक बड़ा And असद भाई, if I may add, interesting जो आप बात बता रहे हैं, ड्रॉप आउट भी वो हैं कितने उनकी कंपनी में, एंड कौन सी जगह से वो लोग ड्रॉप आउट से, लोगों को ये भी जानना चाहिए ना। if someone is a dropout from Harvard और स्टैनफोर्ड और उधर से आए हुए हैं, आईवी लीग्स के ड्रॉप आउट है, तो वहां तक पहुंचते हुए भी तो उनकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। और ड्रॉप आउट होना फैशनेबल, अच्छा है कि आप फैशनेबल उसके फैशन को आप कम कर रहे हैं ड्रॉप आउट पर। नहीं असफर, देखिए मैं ना काफी यंग लोगों से जब मेरी बात होती है तो वो ना एजुकेशन को, या आजकल जैसे एक बड़ी डिबेट चल गई कि जी आप स्किल सीखें, एजुकेशन कुछ नहीं होती, स्किल सीखें आप एजुकेशन नहीं होती। तो यार मैंने तो मास्टर्स भी किया है और फिर मैंने कोर्सेज भी किए हैं। अगर आप कभी जाके टेक्निकली रिसर्च करें, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, वार्टन, इंसीड, ये वो टॉप नाम है जो फैशनेबल भी यूनिवर्सिटीज हैं, लोग इनको मार्केट भी करते हैं। आप जाके देखें, ठीक है लोग इनकी डिग्रियां नहीं कर रहे, राइट, एक ब्रीड वो है जो डिग्रीज कर रही है, लेकिन जो दूसरी ब्रीड है जिसको लोग मिस करते हैं वो सारे CEOs हैं, वो सारे बड़े बड़े मैनेजर्स हैं जो वहां जाते हैं 5 दिन के 4 दिन का कोर्स कर आते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट करें मार्केटिंग है तो जो मार्केटिंग हमें MBA के या BBA के कोर्स में
35 घंटे में 4 महीने में पढ़ाई जाती है, वही मार्केटिंग विथ मोर एग्जाम्पल्स उनको 4 दिन में कराई जाती है। मैंने पूरा मास्टर्स किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मैंने 2 साल ऑक्सफोर्ड में लगाए और मेरे पास 8 कोर्सेज थे। तो मैं वहाँ 2 साल जाके नहीं रहा, मैं चूंकि बिजी हूँ, मेरे अपना बिजनेस है, तो मैं हर 2 महीने बाद 4 दिन के जाता था। सो वो 4 दिनों में वो मेरे 30 क्रेडिट आवर्स पूरे कर देते थे। और वो एक कोर्स, यानी कि रादर देन कि मैं एक 4 महीने के सेमेस्टर में 3 कोर्स पढ़ रहा हूँ और पर डे जो है मैं 2 घंटे का एक सेशन ले रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 4 दिन में एक कोर्स पूरा कंप्लीट, उसके बाद आप असाइनमेंट करें। तो अगर आप जाके रिसर्च करें और आप जाके देखें तो पता चलेगा कि जितने भी बिलियनर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियनर्स, ये सब कोर्सेज अटेंड करते हैं। ये उन्हीं प्रोफेसर से कोर्सेज अटेंड करते हैं जो डिग्रीज में पढ़ा रहे हैं, जो एमबीएस करा रहे हैं, जो बैचलर्स करा रहे हैं, जो मास्टर्स करा रहे हैं, सेम प्रोफेसर। बट ये कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 3 महीने बैठे हैं, 4 महीने बैठे हैं और आपके असाइनमेंट्स लिखते रहे, थीसिस लिखते रहे। वी नीड द ओवरऑल पर्सपेक्टिव। जैसे मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त दुनिया में एक नोबेल प्राइज विनर भी हैं, साइकोलॉजी पे उन्होंने काम किया है, डेविड शेनार, डेविड शेनार की बात कर रहा हूँ, वो है आपका एकदम से नाम मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन खैर मैं बता दूंगा। उनकी बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ठीक है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो उन्होंने बुक लिखी है। और एक कंपनी एज, उसने कोर्स अरेंज किया 3 दिन का, और आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कोर्स का नाम है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज अ कोर्स नेम, ठीक है। और वो ऑथर जो है थिंकिंग फास्ट, डैनियल कहनेमैन ऑथर का नाम है। डैनियल कहनेमैन की बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, आप लिबर्टी से ले सकते हैं, पाकिस्तान से। उस डैनियल कहनेमैन वो कोर्स पढ़ा रहा है, 3 दिन का कोर्स है, और उस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं आपके अमेजोन का सीईओ, गूगल के दोनों सीईओ, ठीक है। और इस तरह की ब्रीफ, सिर्फ ऐसे 10-12 लोग हैं जो बैठ के ये समझ रहे हैं कि हमने थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कैसे करनी है, अपने डिसीजन बायस को कैसे रिमूव करना है। और यही सेम कोर्स मैंने अपनी डिग्री में पढ़ा है और कहनेमैन से पढ़ा है। सेम तरह अगर आप सुपर, एक आजकल जजमेंट पे बहुत बड़ी बात हो रही है, एज ए एंटरप्रेन्योर आपकी डिसीजन मेकिंग जजमेंट इज मैटर करती है। जजमेंट पे फिलिप टेटलॉक की पूरी बुक है सुपर फोरकास्टिंग, और सुपर फोरकास्टिंग का वो डिग्री भी करा रहा है, कोर्सेज भी हो रहे हैं, लेकिन लोग करते हैं। सो ये जो एक अजीब सी हमने ना मुल्क में क्योस क्रिएट कर दिया है कि ये डिग्री जो है उसकी जरूरत नहीं है और डिग्री फेक है और आप इस स्किल पे जाएं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे एक जमाने में, जिसके लिए मैंने बड़ी फाइट भी की है, मैं पिछले 15 साल से यही मिशन लेके चल रहा हूँ कि यार पहले हम पाकिस्तान से बाहर ना प्लम्बर भेजते थे, वर्कर भेजते थे, इस तरह के छोटे इलेक्ट्रिशियन भेजते थे। अब हम पढ़े लिखे इंजीनियर भेज रहे हैं, लेकिन वो जाके काम वर्कर ही वाला ही कर रहे हैं। तो आपने डिग्री को यूज करना है टू सेल योर स्किल, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू यूज योर डिग्री टू सेल योर नॉलेज। आप डिग्री को यूज करें फॉर स्किल, और वो डिग्री आपको एक हमेशा एज देती है, बिकॉज स्किल आपको लिमिट कर देती है कि आप एक काम कितने अच्छे से कर सकते हैं, और डिग्री आपको परसेप्शन देती है कि चीजें जो है वो कलेक्टिवली कैसे काम करती हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि डिग्री जो है वो इट्स अ वेस्ट थिंग। नो, इट्स नॉट वेस्ट। इट गिव्स यू परसेप्शन, इट गिव्स यू द ओवरऑल पर्सपेक्टिव। तो अगर आप बगैर पर्सपेक्टिव के स्किल है तो शायद आप बहुत अच्छे वेल्डर होंगे, लेकिन उससे बनाना क्या है, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। सो कम बैक टू दिस पॉइंट, यही पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और इसी चीज को मैं देखता हूँ, और मैं जो एंटरप्रेन्योर्स में और जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स में कमी देखता हूँ वो ये है कि वो लाइफ साइकिल को मिसअंडरस्टूड करते हैं, मिस यूज करते हैं, एंड इवेंचुअली उनका प्रोजेक्ट कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। इवन दो जैसे कि बहुत सारे ईआरपी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको बिग ब्रांड्स के नाम बता रहा हूँ। ऑरेकल ईआरपी इंप्लीमेंट कराता है, माइक्रोसॉफ्ट इंप्लीमेंट कराता है, सैप इंप्लीमेंट कराता है। अगर आप अपनी कंपनी में किसी भी बड़ी कंपनी, दे आर बिग जायंट्स, राइट, और पाकिस्तान में कम से कम भी 15-20 के करीब तो इनके इम्प्लीमेंटर्स होंगे जो ये ईआरपीज इंप्लीमेंट करते हैं। सो आई एम गोना टॉक अबाउट द वेरी सेंसिबल थिंग। मैंने एक दफा एक प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करा था, एंड ऑल दीज big vendors and their implementers came to me for pitching their product and said, so मैंने उनसे पूछा कि जी आपकी प्रोडक्ट कितने अरसे में आप हमें ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर देंगे। तो एक कॉमन जवाब था, जी 8 महीने की इंप्लीमेंटेशन है, 2 महीने की सपोर्ट है, 7 महीने की इंप्लीमेंटेशन है, 2 महीने की सपोर्ट है, एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग सेम थिंग। एंड देन आई आस्क्ड देम, ओके ये बताएं मुझे कि आज तक आप लोगों ने कितने प्रोजेक्ट 7 महीने में इंप्लीमेंट किए हैं। एंड द राइट आंसर इज 0, जिल्च, किसी ने भी नहीं किया। और मैं तो ईआरपीस किए नेशनल बैंक में, पाकिस्तान आर्मी में, डिस्ट्रीब्यूशन में, एनजीओज में, आई मैनेज दिस प्रोजेक्ट। इंटरेस्टिंगली होता क्या है कि आप कहते हैं जी हम एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे और गो लाइव कर देंगे, जो ट्रेडिशनल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर मैं 8 महीने का प्रोजेक्ट लूं तो हम 6 महीने या 6.5 महीने या कीप इट 6 महीने हम लेते हैं एनालाइज, डिजाइन, डेवलप में। अब हम समझते हैं कि जी टेस्टिंग 2 महीने का काम है।
मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके मार्केट में सर्च करो, 6 महीने डेवलप करते हैं और 12 महीने टेस्ट कराते हैं। 12 months, 18 months. I have seen that thing. UAT1, UAT2, test cycle 1, test cycle 2, implementation 1, implementation 2. क्यों? क्योंकि जो आपको पहले स्टेजेस पे जहां पर आपने इसका फीडबैक है वो लिया ही नहीं आपने। जहां आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी थी वहां आपने सो कॉल्ड यूएसबी, सो कॉल्ड फीचर, सो कॉल्ड फंक्शनैलिटी उस पर बात की आपने। और यूजर जो है, मजे की बात क्या है, जब शुरू में आप यूजर को एंगेज करते हैं तो वो आप पे ट्रस्ट करता है। वो कहता है जी आप एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आपने सेल किया था इस तरह से। आप कहते हैं कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरा एक्सपीरियंस है, हमने 100 जगह इंप्लीमेंट किया है, हमने इतनी जगह इंप्लीमेंट किया है। वो कहता है ठीक है। जब आपको हमारे वो प्रोजेक्ट देता ही आपको इसलिए है कि आप कहते हैं कि जी हमारे पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं, इतनी इंप्लीमेंटेशन का, और आप ये कहते हैं जी हमने 100 इंप्लीमेंटेशन की और आपकी इंडस्ट्री में तो 12-15 की है, तो हमसे बेहतर कोई नहीं। पता ठीक है, तो यू नो माई इंडस्ट्री, जस्ट डू इट। तो जब आप जस्ट डू इट पे शुरू करते हैं तो पता चलता है कि जी जो आपने 8 महीने का सेल किया उसमें 6 महीने आपने डेवलप किया है, और अगले 12 महीने, 18 महीने, 10 महीने आप सिर्फ टेस्टिंग करा रहे हैं, क्योंकि वो कहता है ये तो चाहिए नहीं, ये तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहा। प्रॉब्लम यही होती है कि जो डेवलपर होता है वो आउटपुट माइंडसेट से आ रहा होता है, और जो यूजर होता है वो आउटकम माइंडसेट से आ रहा होता है। हमेशा से क्लैश होता है आउटपुट वर्सेस आउटकम का। और ये प्रॉब्लम आप उसी वक्त सॉल्व कर सकते हैं जब आप अपनी लाइफ साइकिल को हाइब्रिड वे में इंप्लीमेंट करते हैं। और अगर आप स्टार्टअप रन कर रहे हैं, आप टेक स्टार्टअप रन कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, मैं तो लोगों से कहता हूं, मैंने एक नंबर शेयर किया जिसपे मुझे बाद में बड़ा जो है वो एतराज किया गया। मैंने कहा यार फर्ज करें मैं एक 4 बंदों की टीम बना के एक प्रोजेक्ट करता हूँ। एक यूनिवर्सिटी में क्या, मैंने यहाँ फिगर शेयर किया, आप क्या शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे इसका, अगर हम एक यूनिवर्सिटी में हैं, लेट्स सपोज हमारी यूनिवर्सिटी में 120 लोग हैं, ठीक है, और हम 4 बंदों की एक टीम बनाते हैं, तो आपके ख्याल में अगर हम 120 लोगों की 4 बंदों की टीम बनाते हैं तो हमारे पास कितने टीमें बन जाएंगी, बताएं जरा मुझे। 30 टीम्स हो गई। ओके, सो 30 प्रोजेक्ट्स हो गए। अच्छा, हर टीम में अगर 4 लोग काम कर रहे हैं, और मैं पाकिस्तान का जो सबसे कम सैलरी वाला फिगर है अगर मैं वो रखूं, तो कहते हैं कि जनाब आप 17,000 रुपए देते हैं। चले मैं 15,000 कर लेता हूँ। अगर एक एम्प्लॉय को आप 15,000 रुपए सैलरी देते हैं और मल्टीप्लाई बाई आप उसको 4 कर लेते हैं, तो 60,000 रुपए होगा। तो 60,000 रुपए का एक टीम पड़ी। अगर 60,000 की एक टीम है मेरे पास, मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 30 टीम्स का लेता हूं, तो मेरे पास 18 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से यूनिवर्सिटीज वेस्ट कर रही हैं उन 30 प्रोजेक्ट्स को, जिससे कोई यूज ही नहीं करेगा। और अगर मैं ये कहूं कि ये प्रोजेक्ट पूरे 1 साल का है, तो आप समझ रहे हैं कि 18 लाख को आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो क्या, चले 2 महीने आप इसके निकाल दें, एग्जाम्स के निकाल दें, तो 10 महीने तो कर लें। तो अगर एक यूनिवर्सिटी में 30 टीम्स अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बना रही हैं, तकरीबन आप 1,80,00,000 रुपए से ऊपर खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स, वर्थ, मिनिमम वर्थ, राइट। एट द एंड ऑफ द उन 30 प्रोजेक्ट्स में से कितने प्रोजेक्ट्स एक्चुअली मार्केट में चल रहे हैं, एंड यू विल हैव आंसर। और मैंने कम यूनिवर्सिटी से पूछा कि जी अच्छा आप तो 10 साल से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं, 20 साल से करा रहे हैं, से 10 साल से बात कर लेते हैं। तो अगर 10 साल से मैं स्टैंडर्ड कर लूं कि हर साल 30 प्रोजेक्ट्स बनते थे, तो 10 सालों में 300 प्रोजेक्ट्स बन गए। तो मुझे इतना बता दें कि उन 300 प्रोजेक्ट्स में से कितने प्रोजेक्ट्स मार्केट में रन हो रहे हैं, तो आंसर था 0। और अगर 1 साल में 1,80,00,000 लग रहा है, तो 10 सालों में कितने पैसे लग गए। तो अब आप ये सोचें कि अगर आप ये नंबर ऐड करें, तो ये तो हमारा वेस्ट है, हमारा टैलेंट का वेस्ट है, रिसोर्स का वेस्ट है, एफर्ट्स का वेस्ट है। तो अगर आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को ही स्टार्टअप ले लो, ठीक है, और आप कहो कि यार ये वो टाइम है जब अम्मा पापा मुझे जूते नहीं मारे बल्कि पैसे दे रहे हैं पढ़ने के, काम करने के, अम्मा खाना बनाने के लिए। लेकिन जिस दिन आप यूनिवर्सिटी से फारे होंगे ना, उस दिन पता चलेगा कि अम्मा बोलेंगी हट आराम, खाना खा रहा है, जाके जॉब कर। और उस वक्त अगर आप कहते हैं कि जी मैंने बिजनेस करना है, मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं भाई बिजनेस करना है, मैं कहा भाई घर के हालात क्या है, कितने महीने घर वाले बगैर पैसे के सपोर्ट कर सकते हैं, तो पता चलता है नहीं। और अगर आप डाटा देखें तो पता चलता है कि मोस्टली सक्सेसफुल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स वो हैं जिनकी फैमिली से सपोर्ट है। हमारे यहाँ कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप पेट काट के पैसे बचा बचा के उनको बैचलर्स कराते हैं, यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बच्चा जिस दिन पास होगा उनके सारे मसले दूर हो जाएंगे और बच्चा कमाना शुरू कर देगा और वो आहिस्ता आहिस्ता रिटायर हो जाएंगे। हमारा बच्चा कह रहा है मैंने स्टार्टअप बनना है और पता नहीं मैं सक्सेसफुल होना है, वो कहते दो जूते पड़ते हैं सक्सेसफुल की तरह जाकर जॉब पर। और आप देखें एंड अप कहाँ होता है। कितने सारे लोग हैं जिनको यही नहीं पता होता कि जी मैंने बिजनेस कैसे करना है। यानी कि इवन तो इतना बड़ा होने के बावजूद भी जब मैं
अपने दोस्तों से कहता है यार तुम जॉब करो तो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है जिसको आप एंड टू एंड देख रहे हैं उसको खुदा के वास्ते लीनियर मॉडल में मत देखें, उसको प्रोडक्ट की नजर से मत देखें, उसको सेल की नजर से देखें, उसको यूजर की प्रॉब्लम की नजर से देखें। और ये उसी वक्त हो सकता है, जो मैंने पहली बात की उसको दूसरी स्लाइड से मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ये उसी वक्त हो सकता है जब आप अपने प्रोडक्ट को लाइफ साइकिल को हाइब्रिड वे में डिजाइन करेंगे, उसके मल्टीपल फेजेस रखेंगे और हर फेज में आपका सक्सेस क्राइटेरिया जो है वो टाइम कॉस्ट स्कोप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कंप्लीशन नहीं होना चाहिए, वो टाइम कॉस्ट स्कोप एंड यूजर एडॉप्शन होना चाहिए। तो अगर आप ये फैक्टर ऐड इन कर देंगे तो आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो भी आपको सपोर्ट करेगी और जो रिजल्ट है वो भी आपको जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा। सो Aswar, I am done with this slide. If someone has any question this regard, then I can answer and then I can move to the next slide. वो है कि Ajmal Hussain is asking, can we adopt the PLC product life cycle or of the product we are selling in product management, or we have to design a specific PM life cycle? देखिए और आपको एक वो है लाइफ साइकिल वर्सेस फेजेस की भी वो मजीद जानना चाह रहे हैं सैयद अली। अली देखिए पहले मैं कहिए Aswar, प्लीज कंप्लीट करें। मैंने कहा दैट्स एक्चुअली वो अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं मोर ऑफ अ लाइफ साइकिल वर्सेस फेजेस। ओके देखें पहली बात तो ये कि लाइफ साइकिल के अंदर फेजेस होते हैं। लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल सिर्फ इतना है कि कोई भी चीज का स्टार्ट और एंड क्या है। जैसे अगर हम अपनी बात कर लें तो हम पैदा होते हैं और अगर कोई मिसहैप ना हो तो बुढ़े होकर मर जाते हैं, तो दैट इज अवर स्टार्ट और एंड। लेकिन इस स्टार्ट और एंड के बीच में फेजेस हैं। यू नो हम इन्फेंट हैं, हम टॉडलर हैं, हम किड हैं, हम टीन हैं, अब बीच में 12 भी आ गया है, ठीक है, टीन है, हम यंग हैं, मेच्योर हैं, ओल्ड हैं, ओल्ड एनफ है। सो एवरी दीज आर माय फेजेस। हर फेज की कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई ना कोई डिलीवरेबल है। तो हम जब अपने लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल का मतलब है कि इट कंटेन्स फेजेस। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। अब आपने देखना है कि हर फेज का स्कोप क्या है। जैसे फर्स्ट करें, अगर मैं करंट अपनी बात करूं तो इस वक्त जिस एज ब्रैकेट में मैं हूं, मेरा कुछ स्कोप है और ये मेरा फेज प्रॉब्ली अगले 10-12 साल तक रहेगा। तो अगर मैं इस फेज के स्कोप को डिफाइन कर लूं, इस फेज के रिस्क को एड्रेस कर लूं और ये देख लूं कि यार इस फेज में जो स्टेक होल्डर मेरे अराउंड है उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, सो I'm easily able to perform well. सो प्रॉब्लम ये है कि हम फेजेस की नजर से देखते ही नहीं है, हम प्रोडक्ट की नजर से देख रहे होते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट मल्टीपल फेजेस से गुजरेगी, हर फेज का कोई ना कोई स्पेसिफिक डिलीवरेबल होगा, हर फेज का कोई ना कोई स्पेसिफिक रिस्क होगा और हर फेज का कोई ना कोई स्पेसिफिक स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन होगी। तो जब मैं जवान था, जब मैं स्कूल गोइंग था या यूनिवर्सिटी गोइंग था, उस वक्त के डिलीवरेबल, उस वक्त के रिस्क और उस वक्त की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी। अब जबकि आई एम मैरिड, आई हैव किड्स, आई हैव माय कंपनी, सो आई एम इन अ डिफरेंट फेज। सो इस फेज का स्कोप, इस फेज की एक्सपेक्टेशन और इस फेज के रिस्क डिफरेंट है। तो अगर मैं उसको उस नजर से नहीं देखूंगा तो मैं कभी भी चीजों को देख नहीं पाऊंगा, कभी भी मैं उस चीज को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो दैट्स बेसिकली हम इंक्रीमेंटल अप्रोच को यूज कर रहे होंगे। तो दिस इज माय स्ट्रेट अवे टू पीस बिट इनपुट अबाउट दिस थिंग। देन एक सवाल आया है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम यूज कर सकते नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप ये कहें कि इन अ बिगर स्पेक्ट्रम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको जो है ना वो बताएगी कि आपने प्रोडक्ट को स्टार्टअप से लेकर मैच्योरिटी से लेकर डिक्लाइन पे कैसे लेके जाना है। लेकिन ये एक टेक्निकल मैं लाइन यूज कर रहा हूँ, बाद में कभी इस पे बात होगी तो एक्सप्लेन कर दूंगा कि अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंटेन्स मल्टीपल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। सो लेट्स सपोज अगर मेरी प्रोडक्ट आइडिएशन फेज में है तो उसका भी एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, और जाहिर उस प्रोजेक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल है। अगर मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट करो ग्रोथ फेज में तो उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल है। तो अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा एक सुपर सेट है, दैट इज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एंड विद इन दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आई हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो कभी मुझे ग्रोथ का प्रोजेक्ट करना है, कभी मुझे सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट करना है, कभी मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करना है, कभी मुझे मे बी इन अ बिगर कैन शट डाउन प्रोजेक्ट्स करने हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन विद इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एज फॉर आई बिलीव किसी का कोई टेक्निकल सवाल है अगर आप मुझे प्लीज बता दें, तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन आया था और आई लाइक दिस क्वेश्चन। अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं उसमें ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला क्वेश्चन था और ये बड़ा मीनिंगफुल भी है और इसका हैड मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, तो मैंने कोशिश की है कि उसको बड़ा कंसाइज वे में। उन्होंने आपको इंडिविजुअली में भी पूछा हो। अभी एक क्वेश्चन वैसे ऑब्जर्वेशन है अरसल की कि फिर यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो वहीं फंसे हुए हैं कि ड्रॉप आउट्स, और उसमें आई थिंक से उनका जो है अरसल बड़ा रेगुलर है हमारे यहाँ, लेकिन वो कभी कभी जो है he wants his answer to be exactly उसकी चॉइस पे पसंद
जवाब? नहीं, मैं आपको आपकी चॉइस का आंसर दे देता हूँ, बड़ा आसान आंसर है। MIT दुनिया की उन चंद यूनिवर्सिटीज में से हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में डिग्रीज कराई। सो आई एम सेइंग डिग्री इन एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके बारे में कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर को डिग्री की जरूरत नहीं है। और आप अगर उसकी डिग्री को जाके देखें तो वो ये कहते हैं कि जो उनके पास आउट स्टूडेंट्स हैं ना, कोई ये मार्केट ही नहीं करता, जो उनके MIT के पास आउट ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने जितनी कंपनियां बनाई हैं और उन कंपनीज ने जितने पैसे अर्न किए हैं, दैट इज इक्वल्स टू 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी तक आपने 15-20 जो है वो ड्रॉप आउट की केसेस पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको 1500 ग्रेजुएटेड एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने अपनी कंपनियां खड़ी की हैं और कलेक्टिवली जो उन्होंने पैसे अर्न किए हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। So this is very fantastic, right? This is very interesting concept. पर point ये है, हमें जो है मजा आता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग ना कैरिज्मा के पीछे भागते हैं, हम सुपर पावर के पीछे भागते हैं। वी लव टू वेयर सुपरमैन कॉस्ट्यूम बिकॉज वी थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। बट पॉइंट ये है कि वो जो मेकिंग ऑफ सुपरमैन है ना, वो कुछ और है, और जो शोइंग ऑफ सुपरमैन है वो कुछ और है। ठीक है ना? तो ये बड़ा डिफरेंट है। तो हम एक तरफ तो हम कहते हैं यार सादगी अपनानी चाहिए, और हम फैंटेसाइज करते हैं बिग कार्स को, बिग हाउसेस को, कंट्री साइड बिग। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो अपने उसमें कंट्रास्ट में। आप किसी से पूछे, आप सबसे पूछे, हर कोई आपको जो है ना टीवी पे इस पे ना शादी के बारे में जो है वो कहानियां सुनाते हुए नजर आएगा। आप उससे पूछें यार आपके पास AC है या नहीं है, तो वो जवाब होगा बिल्कुल है जनाब। अब उसकी सादगी की डेफिनेशन क्या है? ठीक है ना? हर कोई कहेगा यार आप लीड अ सिंपल लाइफ, तो उसकी सिंपल लाइफ जो है वो एक डिफेंस के 10 करोड़ के घर में गुजर रही है। तो अब आप कहेंगे यार अच्छा यार ये क्या है? तो आप जितने लोग, आप मुझे बता दें आप कितने लोगों को आइडियलाइज करते हैं, ठीक है, जो क्या नाम है उसका, और उसकी लाइफ गुजारने आते हैं। बड़ी सिंपल एग्जाम्पल है, हमारे पास कराची में एक बहुत मशहूर हस्ती गुजरे हैं, ईदी साहब। ठीक है ना? हर कोई ईदी साहब की बात करे, क्या जिंदगी गुजारी, क्या किया। लेकिन मुझे बता दें कितने ईदी आप में से बने, हम में से कितने ईदी बने, कितने लोग वो काम करना चाहते हैं? Nobody wants to do it. Nobody wants to live that simple life. So that's what the point is. So बात यह है कि आप इस चीज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो then you will find it out way. So अच्छा, आप एक नया आइडिया लेकर आते हैं, आप कहते हैं जी मेरा ये आइडिया है, मैं स्टार्टअप खड़ा कर रहा हूँ। आप जिस भी स्टार्टअप वाले से पूछे तुम्हारी दिल की ख्वाहिश क्या है, एवरी स्टार्टअप विल गो एंड से आई वांट टू बिकम अ यूनिकॉर्न। वाओ, वेरी गुड। And what would you do with all this money? Are you going to donate it? Boss, sorry to interrupt. We are having a couple of questions. One of the questions is from Mohammad Zishan Haq. His question is that project and product treating differently with respect to the nature of job and profession. How we make sure that which approach of project management is best for our startup and our product development. This is one question from Mr. Zishan. Okay, always hold on. मैं पहले इसका आंसर दे दूं one by one. देखिए ज़िशान, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बाय द वे कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं उसका एंड रिजल्ट तो प्रोडक्ट ही है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि स्टार्टअप के लिए जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल चाहिए वो यही है जो मैंने मेंशन की है, द करंट स्लाइड, डिजाइन हाइब्रिड लाइफ साइकिल। तो आप कोई टेलर मेड आपको बनानी पड़ेगी, आपकी अपनी होगी, थोड़े बहुत आप उसमें एजाइल के फ्लेवर यूज करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो रेडीमेड है और एवरीबडी कैन यूज इट, तो देयर इज नो वन साइज फिट फॉर्मूला फॉर ऑल। If you think that there is one size fit formula for all, then you are going to lose. ठीक है? तो इसीलिए मैंने कहा है that is why my first word is design. So जिस तरह से आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं उस तरह से प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन को भी डिजाइन करना पड़ेगा। ये एक बहुत की डिलीवरेबल होता है जिसको लोग मिस कर जाते हैं। इनफैक्ट लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही नहीं करते हैं। When I teach project management, I say the missing part in project management is project management. Because we know we don't use it, we take it for granted. So अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को लाने का भी तो एक प्रोसेस है, उसकी भी तो एक लाइफ साइकिल है, उसकी भी तो एक माइंडसेट है। अगर आप वो नहीं डिफाइन कर रहे, then it means you are going to lose. That's what the answer is. So always, what is the next question? Okay, next is not a question. It's more like it's from Raza Ali, and basically your input is required in this. I think we need a good economic coordinator who can coordinate with industry for university final year projects to be more effective and practical in terms of usage and implementation. What's your input in this? यार
एक एक कॉन्सेप्ट है, एक बात है जो मैं शायद 15 साल से तो हर कॉन्फ्रेंस में सुन रहा हूँ। और अब तो वैसे ही मैं लोगों को, मुझे कुछ लोग कहते हैं मैं घमंडी हूँ, मैं कॉन्फ्रेंसेज में नहीं आता, मैं लोगों से मिलता नहीं। मैं मेरा आंसर है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाएं, किसी भी मीटिंग में जाएं, कोई भी नई बॉडी बनती है, ठीक है, पहले मैं काफी बॉडीज का पार्ट भी था एंड आई क्विट, तो उसमें एक ही बात होती है जी, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। मतलब इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन एक गाली बन गया, ठीक है। असफर और मैं एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में थे, हम कोई और बात कर रहे थे, असफर वहां भी एक टॉपिक की कॉमन था जी, हमने इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन करनी है। एंड माय फुट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय फुट, देयर इज नो इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। आप इंडस्ट्री वाले से पूछेंगे बोलेंगे एकेडमिया नहीं आता, एकेडमिया से पूछेंगे बोलेंगे इंडस्ट्री नहीं आती। दे बोथ आर वर्किंग इन देयर ओन साइलोज एंड दे बोथ आर हैप्पी, बिकॉज जिसने कोलैबोरेशन के लिए गाइड कर रहा है वो अपने पैसे कमा रहा है, घर जाके सो रहा है, उसको कोई कंसर्न नहीं है। आप बेवकूफ हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपकी नीड है डिग्री की, आप जाएं, तो भाई जिसकी नीड है वो जाए। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आप क्यों अपने टीचर की तरफ देख रहे हैं कि वो आपको गाइड करेगा कि जी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन करनी है? आपको किसी ने रोका है? किसी ने आपका हाथ रोका है कि नहीं जी आप इंडस्ट्री खुद से नहीं जा सकते, या कोई लेटर चाहिए? यार आप, मैं प्रॉब्ली आई वुड से, जब आपको कोई खूबसूरत अपोजिट अट्रैक्ट करता है, आप क्या करते हो? यू गो एंड अप्रोच देम and you talk about yourself and you try to उसको जो है आप परसुएट करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं तो जाएं, सर्च करें, इंटरनेट भरा पड़ा है, चीजें भरी पड़ी हैं, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन के लिए। आपके लिए बेसिक ये है, मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। हर गधा, सॉरी माय वर्ड्स, हर कोई बात करेगा इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की, लेकिन आपका सॉल्यूशन ये है कि आप कोई भी इंडस्ट्री है, से बैंकिंग इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, आप उस इंडस्ट्री को लिस्ट डाउन करें। आप ये देखें कि वो इंडस्ट्री क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। लेट्स सपोज अगर टेलीकॉम है तो वो डाटा सेल करते हैं, टेलीकॉम है तो वो कॉलिंग मिनट सेल करते हैं। ओके, कैसे करते हैं? अब आप उसमें से जाके रिसर्च करें, बात देखें कि इनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इनको फ्यूचर में क्या चीज चाहिए, फिर उसमें से आप पिक करके कहें जी ये करंट आप इससे कर रहे हैं, कभी करंटली आपकी कॉल इतने पर मिनट आपको पड़ती है, या आपको इस कॉल की करने के लिए हैंड ऑफ में ये होता है, या इसकी सिक्योरिटी का ये कंसर्न है, हम ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। डन, दैट्स इट, दैट्स व्हाट कोलैबोरेशन है। इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। और आप जाके बात करेंगे, सीईओ भी बैठेगा। और मैं जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, लोग जो थे दोनों, वो गए, उन्होंने जाके रिसर्च की, पढ़ा और कर लिया। प्रॉब्लम ये है कि हमें रट्टा फायर माइंड, हमें चाहिए स्पून फीडिंग, चाहे अम्मा करें, चाहे स्कूल का टीचर करे, चाहे यूनिवर्सिटी करे। ओ भाई जाके खुद सर्च कर लो, किसने मना किया है? इंडस्ट्रीज हैं कि इतनी, आप जाके अगर सर्च करोगे तो अगर मैं सेक्टर निकालूंगा, जो कि बड़ा टर्म है, सेक्टर निकलेंगे आपके पास 10, इंडस्ट्रीज निकालूंगा निकलेंगी 50। उस 50 में से आप 5-6 कर लें, 5-6 को सर्च करें, उसमें से पहले 2 साल में आप आंसर ले लेंगे। दैट्स इट, सिंपल। उसको कोई साइंस ही नहीं है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जहाँ बात करें इंश्योरेंस कैसे करती है, कैसे इंश्योरेंस लेती है, कैसे जो है आपका जो है वो किसी भी इंसिडेंट पे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे प्रॉफिट कमाती है, जाके पढ़ लें, प्रॉब्लली 2 दिन का काम है। मसला ये पढ़ना तो है ही नहीं, हर वक्त बातें करनी है कि जी हमने, कोई हमें गाइड कर दे। भाई गाइड, अगर पहली बात, सॉरी मैं अगेन, पहली बात तो ये है कि यार जो अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, मैं आपको ना एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ। जो मैंने अमेरिका से भी मास्टर्स किया है, मैंने यूके से भी मास्टर्स किया है, पाकिस्तान से भी मास्टर्स करने की कोशिश की और छोड़ के भाग गया हूँ मैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। मैं एक जगह, एक यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंटेशन देने गया, तो वहाँ मैं आई वाज थिंकिंग कि यार मैंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, तो मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो बड़ी जबरदस्त होगी और लोगों के लिए नई बात होगी। जब मैं वहाँ करने गया तो वहाँ टीचर जो थे वो आए, उन्होंने कहा सर सब हम भी यही बुक पढ़ा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा यार जबरदस्त, यानी कि जो बात मुझे ऑक्सफोर्ड में जाके पता चली और मैंने वहाँ पढ़ी और मैं यहाँ बताने आया हूँ, तो ये तो इनका टीचर तो उनको यही पढ़ा रहे हैं, एंड दैट्स नथिंग लाइक इट। तो खैर उसके बाद फिर जब ब्रेक के बाद व्हेन आई अगेन टॉक्ड अबाउट इट, तो मैंने उनसे एक प्रॉब्लम दी। मैंने कहा ये प्रॉब्लम है और मुझे पता चला है कि आप लोग इस बुक को पढ़ा है और ये मॉडल है, ये फ्रेमवर्क है, तो जरा यार आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। तो मैंने फिर बाद में जब मैंने रिसर्च की, बिकॉज आई ट्राई टू डू रिसर्च, मेरी रिसर्च का मतलब होता है कि खुद जाके 40-50 लोगों से पूछूं, कोई आर्टिकल पढ़ूं, कोई करूं। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि फर्स्ट करो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि फर्स्ट करें मेरी कंपनी है वो ग्रो नहीं कर रही, मेरी कंपनी है वो हर साल 100 लोगों को सेल करती है, मुझे 200 लोगों को सेल करना है, अब ये मेरी कंपनी की प्रॉब्लम है। अब क्या होगा, गोरा कहेगा कि इस काम को सॉल्व करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग में पेस्टल मॉडल यूज करना है।
अच्छा, अब ये बात गोरे ने बता दी, एक बुक लिख दी, एक आर्टिकल लिख दिया जो दुनिया में बहुत मशहूर हो गया। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होगा, वो पेस्टल मॉडल आएगा, और वो पेस्टल मॉडल मैं एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा हूँ, और हमें रट्टा मरवा देंगे कि पी का मतलब है पॉलिटिकल, ई का मतलब है इकोलॉजिकल, एस का मतलब है सोशल, और हम सब उस मॉडल का रट्टा मार के उस पर 10 पेज लिख देंगे। और अगर मैं वेस्ट में जाऊंगा तो वो कहेंगे जी ये पेस्टल मॉडल है, और वो कहेंगे जनाब ये रहा प्रॉब्लम, अब आप इस प्रॉब्लम को इससे सॉल्व करें। दैट इज एनालिटिकल माइंडसेट। प्रॉब्लम यह है कि हम एनालिटिकल माइंडसेट यूज ही नहीं करते, हमें डेवलप ही नहीं किया गया। हमें डेवलप किया गया तो आप जाएंगे तो हमें सब पता होगा। व्हाई वी आर सेइंग कि यूनिवर्सिटीज आर यूजलेस, बिकॉज हमें सब पता है, हम उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो वही यूनिवर्सिटीज जब दुनिया में बाहर हैं, वो क्यों सक्सेसफुल हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे नो कि जो नॉलेज उनको दी जा रही है वो कैसे किस एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट होगी। तो जैसे अभी आपने सवाल किया, सर भाई कोई लाइफ साइकिल दे दें, मैंने कहा भाई लाइफ साइकिल दे नहीं रहा, डिजाइन करो। हाँ, मैं आपको ये बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, आपको एजाइल की जो लाइफ साइकिल है या जो स्क्रम की लाइफ साइकिल है उसमें ट्रेडिशनल मॉडल को मर्ज करना। अच्छा, अब आप कहेंगे नहीं मुझे, अब आप रट्टा मार लेंगे कि ट्रेडिशनल क्या होता है, एजाइल क्या होता है, उसके अंदर स्प्रिंट क्या होता है, सब पता है, लेकिन आप उसको फ्यूजन बना के अपने लिए कोई सॉल्यूशन नहीं बना सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगर आप मुझसे कहते हो कि इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन करनी है, मैं कहता हूँ यार मैं तो थक गया हूँ और ना मैं सुनना चाहता भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ वाई, जिसको प्रोजेक्ट करना है, जिस स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट करना है जाके कर ले यार। जाओ अपनी पसंद की, अपने दोस्तों की, अपने अब्बू के रेफरेंस से, अपने अब्बू के दोस्त के रेफरेंस से, अपने दोस्त के अब्बू के रेफरेंस से, किसी भी रेफरेंस से जाके अंडरस्टैंड करें। प्रॉब्लम क्या है कि आप जाके आपको यही नहीं पता होता कि सवाल क्या करना है। आपको ये सवाल करना है कि मैंने ये समझना है कि वो जो इंडस्ट्री है वो करती क्या है और कैसे करती है, क्या बेचती है, कैसे बेचती है, क्या प्रॉब्लम है उसको, और उस प्रॉब्लम को लेके सॉल्व कर दो। इतना नन्ना सा, बस इतना बहुत नन्ना सा। सवाल लाइन अप हो रहे हैं। प्लीज नाउ आई एम अप फॉर आंसर्स। ओके, समी चौधरी पूछ रहे हैं कि हाउ डिजाइन थिंकिंग कैन हेल्प इन स्टार्टअप्स। मैं समझता हूँ कि डिजाइन थिंकिंग में, स्टार्टअप में अगर डिजाइन थिंकिंग नहीं है तो स्टार्टअप ही नहीं है। डिजाइन थिंकिंग जो है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है इनोवेशन की। स्टार्टअप बनाते ही इसलिए हैं कि हम कोई यूएसपी बनाएंगे, कोई नई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो डिजाइन थिंकिंग जो है वो आपको ये बताती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसके इम्पॉसिबल अनयूजुअल ऑप्शंस कैसे क्रिएट करेंगे, और फिर उससे आप कैसे जो है वो रिजल्ट लेंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं आपको बताऊँ, स्टार्टअप, आप स्टार्टअप कर रहे हैं और आप अपनी तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ आज के किसी भी स्टार्टअप को करने का स्ट्रक्चर्ड वे क्या है। इसी तरह लोग पहले इनोवेशन करते थे, क्रिएटिविटी करते थे, सिर्फ उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे दे दिया, यानी कि किसी भी इनोवेशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है, दैट इज डिजाइन थिंकिंग। तो अगर स्टार्टअप कोई चीज इनोवेट नहीं कर रहा, कोई चीज नहीं डिफाइन कर रहा और इसका स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है, तो दैट इज फिर मतलब अल्लाह ताला ने कहा है मेरी मर्जी में जिसको दूं। तो अगर आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल है तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि किसी को भी पैसे मिलने या अमीर होने का ताल्लुक जो है उसकी नॉलेज से नहीं है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो डिजाइन थिंकिंग। सवाल है जी, अजमल हुसैन, as a commercial manager, my KPIs include multiple tasks ranging from launching of product till S&D and customer usage response. Can we term each of these activities as individual modules of product management? देखिए मैं ये कहूँगा कि ये जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स हैं ये आपके इंडिविजुअल, आप इसको प्रोजेक्ट्स ले लें, ठीक है, या आप उसको फेजेस ले लें, और फिर आप उनको, और मेरी अगली स्लाइड में मैं इस बात पर जिक्र करूंगा कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन यस, दे आर इम्पॉर्टेंट। अब आपकी जो टर्मिनोलॉजी है, आप टर्मिनोलॉजी, आई एम नॉट फॉर टर्मिनोलॉजी, आप मॉड्यूल कहो, आप फेज कहो, आप प्रोजेक्ट कहो, बट यस आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया है कि आप उसको इंडिविजुअली देखेंगे लेकिन इंटीग्रेटेड वे में। सो मैं प्लीज इस जुमले को जरा समझ लें, वो एक इंडिविजुअल सेगमेंट है लेकिन वो सेगमेंट इंडिविजुअली वर्क नहीं करेगा, वो इंटीग्रेशन के साथ काम करेगा। प्रॉब्लम क्या है, या तो लोग उसको आइसोलेट कर देते हैं या उसको किसी का पार्ट बना के छुपा देते हैं। तो ना वो किसी का पार्ट है ना वो आइसोलेशन में होगा। तो आपको वो गियर्स बिल्ड करने होंगे और हर गियर ने अपने साथ काम करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओवेस। Boss, no further questions. You can Okay. proceed with the slides. Okay. So I think so. design. Sorry, एक क्वेश्चन शायद इनका नेहा का जो था वो आंसर हो गया था, वैसे जो इन्होंने पहले पूछा था नेहा ने।
दोबारा पूछ लो, मैं बता दूंगा अगर क्विकली क्या है। असफर आप जी मैं जी बता दूं। जी, मैं मुझे दिखा था इनका एक यस बॉस, नेहा इनाम का सवाल था, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। देखें, प्रोडक्ट जो है वो एक बिगर पर्सपेक्टिव में काम कर रही होती है, जहां आप ये कहते हैं कि जी हम आइडिया जनरेट करेंगे, प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे, उसको ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे, और प्रॉब्ली एट टाइम वी विल रिटायर इट। तो दिस इज हाउ द होल थिंग्स वर्क्स एंड टू एंड। बट प्रोजेक्ट जो है, उसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें, आपने आइडिया जनरेट करना है, तो आप आइडिया जनरेट करने का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट डेवलप करनी है, एक प्रोजेक्ट ये है। आपने प्रोजेक्ट में अपग्रेडेशंस करनी है, एक प्रोजेक्ट ये है। आपने प्रोडक्ट को ग्रोथ पे लेके जाना है, एक प्रोजेक्ट ये है। तो आप जब अपनी प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं और वो सेल होने लगती है और लोग यूज कर रहे होते हैं, तो दो चीजें पैरेलल चल रही होती हैं, एक उसकी ऑपरेशंस और दूसरे उसकी इन्हांसमेंट्स, अपग्रेडेशन, इंटीग्रेशन। तो जाहिर सी बात है कि जब आप प्रोडक्ट को एंड टू एंड देखते हैं, तो हम कहते हैं कि द बिगर पिक्चर में, बिगर पर्सपेक्टिव में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल is the subset, and that contains, or that spawns, the right word should be the spawns multiple project life cycles, and this is how it works. So project life cycle जो है वो बेसिकली आपको प्रोडक्ट दे के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट का काम ये है कि उसको बनाना, उसको चलाना, उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, और फिर इवेंचुअली उसको जो है वो उसको रिटायर कर देना। So that's how it works. ठीक है Ovis, it's all done. Should I move to next slide? Yes boss, please proceed. Okay. So the next slide is I'm sorry, before you start, I'm so sorry, before you start, one last question just came from Sami Chaudhary. Will our old strategy work after Corona lockdown, or strategies will be redefined? Of course, it will be redefined, or it is already redefined. You don't need to wait for post-Corona. We are already in post-Corona. So you need to redefine your strategy. आप ये कोरोना आ चुका है, और अगर कोई ये समझ रहा है कि कोरोना कल खत्म हो जाएगा, या 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, या 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, so what my understanding is, you need to learn how to live with it. So you need to learn how to live with it, and you need to see how things are going to change. To be very honest, मैं आपको मज़ीद बताऊँ, हम पिछले 1.5 साल से अपने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हम ट्रेनिंग का बिजनेस करते हैं, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट ऐड किया था कि हम लोगों को लाइफ के साथ साथ जो हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनको पढ़ाएंगे। हम कोर्स कर रहे थे, उसमें ये होता था कि हमारे पास 15-20 लोग सामने बैठे होते थे, 5, 10, 15 ऑनलाइन बैठे होते थे, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, मल्टीपल कंट्री से। जब और मैं साल में शायद 125-150 लोगों को कोर्स पढ़ाता हूँ पीएमपी का पब्लिकली। सिर्फ ये आई थिंक 20 मार्च से आज तक मैंने टोटल ग्लोबल गया, मैंने मार्केटिंग को टेस्ट किया, एक साइकिल चलाई डिजाइन थिंकिंग की कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, और उस मार्केटिंग में कस्टमर की नीड को समझा मैंने। तो अभी तक मैंने 54 लोगों को विद इन 1 मंथ पढ़ा दिया है। पूरे साल में 125-150, और 1 महीने में 54 लोगों को। And what I did is I just used design thinking, and I see how I can leverage. I'm using the word leverage Corona, and I believe I did it in a good way. So और अभी हम ये टारगेट कर रहे हैं अगले 1.5 महीने 2 महीने में कि जितने लोगों को हम साल भर में पढ़ाते हैं, उसको मैं अगले महीने में, अप्रैल मई में, ड्यूरिंग द रमजान कैसे पढ़ाएं। और मैं आपको एक बताता हूँ, पिछले 15 सालों से हमारा कभी रमजान में कोई कोर्स नहीं हुआ। हमारा आपस में जोक है कि रमजान में ट्रेनर और शैतान बंद होते हैं। And we are targeting to reach more than 150 participants in just this month, and I know how to do it. And again, maybe I failed. That's what it is. That is the beauty, because that is my next phase. That's my next cycle. So जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये कोई बुकिश नहीं है, ये मेरा हार्ड अर्न एक्सपीरियंस है, जिसको मैंने मैप किया है विद ग्लोबल वर्ल्ड। तो जो भी बातें आपसे कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये ग्लोबल नॉलेज, ग्लोबल जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैप करके आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंगेज मल्टी डायमेंशनल टीम। देखिए, एक बड़ा जो डायलेमा मैं यंग स्टार्टअप्स में देखता हूँ, अपने ज़माने में भी मैंने खुद भी यही किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसमें कोई अच्छा नहीं था। हम जो अच्छे डेवलपर होते हैं वो अच्छे दोस्त हो जाते हैं। हम जो जो लोग पढ़ाकू नहीं होते, या जो अगर आप आईटी से हैं स्पेशली, तो देखिएगा सारे नेटवर्क, मोस्टली नेटवर्क वाले एक साथ बैठे होंगे।
और डेवलपर अलग बैठे होंगे या टॉपर अलग बैठे होंगे। हम क्या करते हैं कि हम टीम आते हैं डेवलपर्स की, या हम टीम बनाते हैं। ये दिस इज रॉन्ग थिंग बट आई लर्न फ्रॉम द टाइम। और मैं अक्सर 1-2 यूनिवर्सिटीज में गया, मैं कहा यार यूनिवर्सिटी में 10 तो अफेयर चल रहे होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते। बहुत सी दफ़ा हम जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो लड़के रात रात और बैठे काम कर रहे होते हैं मोस्टली, ऑल्दो मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है और हो सकता है चेंज हो जाए। बहुत सारी खवातीन जो हैं वो या तो खाली अगर 4-5 लड़कियों का ग्रुप है तो वो बहुत अच्छी डेवलपर होंगी, लेकिन अगर 3 लड़कों में 1 खातून है या 2 लड़कों में 2 खातून है तो वो डेवलपर मैंने तो नहीं देखा आज तक। हो सकता होगा और होगा भी, लेकिन मैंने नहीं देखा है। सच के है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता होगा, बिल्कुल होता होगा, जाहिर सी बात है, मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, बट जो मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार वो जो हमारी बहनें हैं, पता नहीं आप तो अभी उसको बहनें नहीं बोलते होंगे, बट जो हमारी जो बहनें उनको आप यूज करें टू डू मार्केटिंग, ठीक है। या हमारे 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 जैसे मेरा जब फाइनल का प्रोजेक्ट था, मेरे ग्रुप में 4 लड़के थे, हम सिर्फ 2 डेवलपर थे, बाकी 2 फारे बैठे रहते थे, या हमारे दोस्त थे या उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, लेकिन चक्कर ये था कि फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से अलाइन था या कहीं ना कहीं। तो अब वो बेचारे बैठ के रिपोर्टें बना रहे होते थे, उनका काम था जब प्रिंट वो नहीं छोटा पैनल लिया या प्रिंट आउट बना के लिया, अच्छा एक काम कर टाइप करते, तो हम उनसे ये काम ले रहे होते थे। तो मैं कहता हूँ यार डोंट यूज दिस वर्ड, उनको आप यूटिलाइज करें फॉर मार्केटिंग, उनको यूटिलाइज करें फॉर सेल्स। देखें, अगर आप सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर डिग्री में है, आईटी यूनिवर्सिटी में आईटी डिग्री कर रहे हैं, तो सब तो डेवलपर बनेंगे नहीं, ना ही सब नेटवर्क के लोग बनेंगे। और अगर मैं अपने हिसाब से बैकग्राउंड बता दूं कि जितने लोगों ने डेवलपमेंट की थी सारे डेवलपर थे नहीं, तो आप उस टीम को मल्टीपल टास्क दें। किसी का काम नहीं यार तुम वेबसाइट डेवलप करो, मार्केटिंग करो, सेल्स करो, फेसबुक करो। इसी ओवेस से यार, जब ओवेस मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए थे तो समहाउ मैं इनको फेसबुक पे देख रहा था, तो ये आए, इन्होंने मुझे अपना सीवी दिया, ये किया, तो इन्होंने कहा मैंने सिखाया यार ये बताओ तुम, 2 काम थे मेरे, एक तो मेरा ऑपरेशनल इशू था और दूसरा ये था, तो मैंने कहा यार तुम वेबसाइट पे और फेसबुक पे अपग्रेड करते हो? कहा हाँ मैं करता रहूँगा। मैंने कहा ठीक है यार तुम ये करना, एंड आई हायर्ड देम बिकॉज आई नो व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है। सो बाद दफा पीपल आर वेरी एक्टिव इन डूइंग दी डिजाइन। इसी तरह बहुत सारे दफा आपकी यूनिवर्सिटी में लोग होंगे जिनको पार्टीज करने का शौक होगा, या आपकी यूनिवर्सिटी में लोग होंगे जो हर वक्त पिकनिक अरेंज कराते होंगे, मीटिंग अरेंज कराते होंगे, तो आप उनको बोलें जाएं सर्वे करें, जाएं कंपनीज में मीटिंग्स करें, तो वो क्या होगा, वो हैप्पी होंगे। नहीं, कोई डेवलपर मीटिंग नहीं करने जाएगा या डेवलपर थोड़ा शाय होगा, तो वो। और मैं समझता हूँ कि जो लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में 10-12 4-5 अफेयर चलाते हैं या जो लोग जो है वो गाने वाने गा रहे होते हैं, गिटार बजा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, या पार्टीज में होते हैं, व्हाटएवर, तो दे आर वेरी गुड रिसोर्स टू यूज देम for networking. They are very good resource to use them for meetings, and they will give you the insights that a developer cannot develop because you are always using the tunnel vision. तो मैं ये कहता हूँ कि आप मल्टी डायमेंशनल टीम को एंगेज करें, और अगर आप 4 डेवलपर हैं तो खुदा के वास्ते डेवलपर 2 हों, बाकी लोग जो हैं वो मार्केटिंग के उसके हों, और आप उसी हिसाब से डिफाइन करें। और जब आप और एक और काम करेंगे, जब आप शुरू में 4-5 लोग की टीम बन जाए और आप समझते हैं कि जी मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरा आइडिया है, तो आप आपस में पहले दिन से ही डिफाइन कर लेंगे किसका क्या परसेंटेज होगा अगर कंपनी चलेगी। तो देयर इज अ वेरी गुड आर्टिकल, यू कैन फाइंड इट आउट, इज फाउंडर्स पाई। सो उसका फाउंडर पाई क्या होगा, किसके, अगर फर्स्ट करें हम, जैसे मैंने भी यही किया था, हम 4 लोग बैठ के प्रोजेक्ट कर रहे थे और हमने कहा यार 4 लोग हैं, अगर हमने इतने पैसे कमाए डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और यही डिवाइड बाई 4 आपको डिवाइड कर देता है, क्योंकि आप कहते हैं मैं तो सारा काम कर रहा हूँ बाकी कर ही नहीं। सो डोंट डिवाइड बाई 4, ठीक है। आइडेंटिफाई कि जी क्या क्या परसेंटेज होगी बेस्ड ऑन द वर्क, बेस्ड ऑन आउटपुट, एंड एट दैट टाइम मैं बताऊँ उस टाइम पे सबका माइंड सेट जो होता है काम करने का, तो उस वक्त आप जो भी ऑफर करेंगे या जो भी एग्री करेंगे वो लास्ट करेगा, और ब्रेकअप का चांसेस भी कम होंगे और बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप डिवाइड बाई 4 की मेंटालिटी से जाएंगे, यू विल डिवाइड अस, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए, यंग स्टार्टअप्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to engage multi-dimensional team, those who are not developers only, those who can do multiple things, so that you can look into it and you review the things. So ये एक बहुत बड़ा important factor है, और मैं देखता हूँ अक्सर जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी स्टार्टअप शो में जाता हूँ तो 4 लड़के खड़े होंगे या 3-4 लोगों का ग्रुप खड़ा होगा, और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक्सप्लेन कर रहा होता या कर रही होती है, तो मैं समझ जाता हूँ उसी ने बनाया। बाकी 2 लोग टाई लगा के, कोट पहन के, कार्ड बांट रहे होते हैं, इधर उधर कर रहे होते हैं, और मैं आई पिक देम पर्पसली, और मैं अच्छा तुम्हारा क्या काम था, तुमने क्या किया,
एंड दे वर लाइक मैं यूं कर रहा था, मैं अच्छा तुमने कार्ड प्रिंट करा है, ठीक है ना, तुम ये स्टॉल लगा रहे थे, तुम रात को झाड़ू दे रहे थे इसको सफाई करने के लिए. So basically don't use them in that way, you know, use your colleagues to do something meaningful and you know let them learn something which is more valuable to you. और आपको बता दूं प्रोडक्ट बनाना आसान है, सेल करना मुश्किल है. हमारी एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी, उसका सेलिंग पॉइंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा. कोई चीज़ ऑटोमेटिकली सेल नहीं होती. एक बड़ी मशहूर सेइंग है, मेरी अम्मी कहती हैं कि खामोश रहने वाले के हीरे रह जाते हैं और बोलने वाले की मिट्टी बिक जाती है. So you need to hire someone who can talk about it so that you can sell your substandard product. That's what I'm saying. Or maybe your early version of the product. That's how it works. So engage multi-dimensional team. So as far always, if somebody has any question regarding this, I'm up. Then I will go for the next slide. Is there someone has some questions? Okay, so I believe कोई क्वेश्चन नहीं है, so I should move on and go for the next slide. Okay जी, next slide हमारे पास है, ये बड़ी important slide है और ये slide जो है basically मैं समझता हूँ कि एक mentality को reflect कर रही है. हम जब project management करते हैं तो हम task के पीछे भागते हैं, हम activities के पीछे भागते हैं. हमें ये सिखाया जाता है project management में कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज में कन्वर्ट करें, एक्टिविटीज की ड्यूरेशन सेट करें, एक्टिविटीज पे कॉस्ट लगाएं, एक्टिविटीज पे रिसोर्सेज लगाएं और एक्टिविटीज को ट्रैक करें. और हम एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज़ें अपनी इंडिविजुअलिटी में काम नहीं कर रही. जो एक सवाल भी आया था कि जी मैं मार्केटिंग है, सेल्स है, उसको मैं मॉड्यूल के तौर पर देखता हूँ. तो मैं कहता हूँ कि यार आप एक्टिविटीज को अलाइन तो करें, लेकिन उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मैनेज करें. जैसे कुछ प्रोजेक्ट से मैंने देखा है कि लोग प्रोजेक्ट में जो इंटीग्रेशन पॉइंट्स हैं, जो कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल का हैंडशेक है, उसको जो है वो मैनेज नहीं कर पाते. तो पहली बात तो ये फ्रॉम द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है मल्टीपल वेरिएबल्स एक दूसरे से कितना कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. और एक बहुत ही मजेदार आर्टिकल है, आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज रीड. हार्वे मिलर का आर्टिकल है हाउ हार्ड कैन इट बी, और वो बात करता है कि जी आप टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे यूज कर सकते हैं. सो बाज़ दफ़ा प्रोजेक्ट इतना टेक्निकल नहीं होता, प्रोजेक्ट की जो कोडिंग होती है वो इतनी टेक्निकल नहीं होती, लेकिन द वे यू डू इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. जैसे आज के दौर में अगर आप देखें कि जब करीम आ गया, उबर आ गया, राइट, तो उसके बाद एयरलिफ्ट ने जो काम किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें टेक्नोलॉजी का इतना कमाल नहीं है, टू बी दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. उसमें ज़्यादा कमाल है कि वो किस तरह से स्केलेबिलिटी करते हैं, किस तरह से अपने ड्राइवर्स को एंगेज करते हैं, किस तरह से जो है वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, किस तरह से वो रूट सेट करते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं. Really sorry, I have to interrupt you right now. We have a couple of audience from Egypt, Iraq, and UAE, and a couple of Emiratis are also online. They are totally unable to understand your language. Basically, I was asked by people to speak in Urdu initially, so I am using it. Otherwise, I just got a WhatsApp from a couple of people from Egypt, Iraq, and UAE. So they are requesting that I cannot understand the language. It's okay. I'm going to change my language, and I'm going to be in English. You see, the problem with the traditional project management is we talk about a lot of activities and we run after activities. The point is we say that we are talking about these are specific activities that we need to perform, and we identify the duration and the cost and resources on activities. But the point is, as a project manager or as a startup project manager, there are a lot of things that are integrated with each other, and you need to identify that integration. You need to identify that dependencies. So if you are unable to manage because sometimes you can resolve the complexity, but sometimes or most of the time you cannot resolve the complexity. Now you need to manage the complexity. So that's what I was saying. That you see, when the example that I was giving is after the Uber or Careem, technology to develop this kind of app is easy. People can hire developers, people can hire Uber developers or Careem developers so that they can develop for you. So when Airlifts comes in, when Swile come in, the technology they need to build or the team they need to use that technology or build the product is not difficult. That's not difficult from the perspective of technology or production or development or coding side. But the problem is how you are going to engage the
drivers, how you are going to engage van drivers, how you are going to find out the routes, how you are going to settle with the your passengers, how you are going to engage passengers, what are their favoritism, what are their dropout points, and how you are going to review these things, how you are going to get approvals from local government or the other governments. So when you look at these things as an entrepreneur, you need to find out and see that what are the dependencies and what are the complexities among these dependencies. And sometimes scope is very clear, it's very simple. What is the scope? The scope is to offer a ride sharing app where you can go and use a very cheap and shared ride. But the point here is it has a lot of complexity in terms of selecting the locations, in terms of engaging the van, in terms of making the trust that you are going to travel with multiple people, in terms of your drop off point. So as an entrepreneur, as a startup, you need to see these things. So let's suppose if I'm talking about delivering something, so one angle is just that one angle is technical, that's one angle is the scope, that one angle is uncertainty in the scope. But the remaining angles are that if I'm going to scale, let's suppose if I'm going to scale, currently I'm doing my services in one city. So let picture Uber, picture Kareem. They started with one city, now they are into hundreds of cities. So don't you think it's more complex, dealing in one city, dealing in location of one, dealing the laws of one location? And that what is happening with Uber in UK, what is happening in Uber in other countries, because they think it's technical, it's not going to work. You need to see this complexity at all. This is not the complexity from the perspective of technical side, this is the complexity from the structure side. So if you are going to grow, if you are going to engage lots of people, if you are going to be dependent, how you are going to resolve this complexity. And then more importantly, you see, if there are a lot of competitors, if there are politics, if there are some giants who want to eat you. And you remember right now, this is a very good the example. I don't know, somebody has I believe that nobody has wrote any article about it, but this is the right now happening with us. All of a sudden, when we have corona, Zoom emerged as a global player. Zoom emerged as a player who is giving us the opportunity to to meet and to network virtually. But what happened is, as market just announced that Zoom is $1 billion company and his shares rises from X to X%. What happened? It got hacked. It got hacked, and now Google CEO is saying don't use Zoom. You see, this is politics. This is power. See, and then and then I just read an article that lots of schools are saying that you should not use Zoom because during the app you will get some adult content. Oh my God, where is technology? There is nowhere. It's politics, it's power. you know and if as a startup entrepreneur, if you are not looking at this thing, if you are not resolving this complexity, if you are not thinking from this perspective, then you're going to lose. And till the time you will recover, somebody will take your pie, somebody will eat your lunch. So when you think of the project, that's a critical part of the project. When I manage a project, I see this thing that how many stakeholders have different opinions, what are at stake from different perspective, who wants this project to be done, who does not want this to be project done, who wants a specific scope in that project, who does not want that specific part in this project, who thinks that his job will be eliminated after this project, who thinks that his job so these kind of a thing. So you need to see things from the integration point of view. And yes, you need to go for the activities, but the major thing is you need to look for the complexities, and find out where are the tangled activities, where are dependent activities. Unfortunately, if I see 100 project plans, what I've missed is, but I don't see them in, and what I don't see in their project plans is they don't have dependent activities. Somehow they assume that it will not happen either, or it will be available as it is. That's not true. And when it happens, you are not prepared for it. Okay, so this is where the problem is. So now as I'm going global, as I'm I'm opening my wings, and I'm talking and I'm giving trainings in multiple countries, and my people are coming from in my every single class I have around people from 8 to 10 different countries, from different time zones. So do you think I am just talking about project management and discussing the project management PMP certification? No way. I have to deal with
lot of complexities in terms of technology, in terms of like the example right now. Yeah, when I start this session, Asfar told me that there is a comment that why we are not using in Urdu. But down the line, after 1 hour, I got a comment that why we are only using Urdu. You see, that's the complexity, and that is the beauty also. That how you resolve it, how you balance these complexities and deliver your project and get the value that you want. And if you are not managing the complexity, let me tell you, you will not be able to achieve the result that you are targeting. And what will happen is that you will have delays, you have short circuits, and then you will be most of the time doing firefighting. And I have seen people, they are good in firefighting rather than managing that thing. And that's where you lose the game. That's where somebody come up with your product with better funds, with better things. So that's how it works. So either you become so big that you buy someone else, or you become so attractive that the bigger player buys you. Either you become a Facebook or you become a WhatsApp, depends on you. So this is how a very important thing is. That's how you manage the complexity, you see. And this is a very important thing. This is called narcissistic leadership. You see, when WhatsApp becomes big enough, Facebook did not build their own WhatsApp. They asked WhatsApp guys that we want to buy you, and they did not say that we want to become a next Facebook. That's very important. Sometime being second or being third is more valuable than becoming a number one. Because if you want to go and become a number one, there is a very famous sentence that people say that we want to be the Microsoft in our field, we want to be the Windows of our field. But becoming Microsoft or becoming number one in your field, in an area, brings lots of complexity, brings lots of power, brings lots of opposition. So like as I said, the example of a Zoom is right in front of us. They just become overnight number one, and then what happens? If they are not going to manage it well, if they're not going to manage it politically and technically, not just technically, right, they're not going to win the war. So as a startup, go ahead. Or should I ask you the questions? Yeah, go ahead. My point is clear now. Go ahead. Okay. We have two short questions. Number one is avenue for startups post-corona. Okay. This is from Hamza Tariq. And another is from Mr. Kamal Uddin Nasir. Is there any difference between managed change and managed complexity? Okay. So first of all, avenues for post-corona. You see, I believe that corona is accelerating the fourth industrial revolution. Corona is helping to adopt fourth industrial technologies. So post-corona avenues are that you use AI, IoT, big data, but you think of them as a means, not as an ends. So identify, let's suppose, what worlds want after corona. They want to market. What worlds want? They want to sell. Okay. Can you develop something through AI, or maybe without AI, that can help somebody to sell it? Did you get my point? Can you build something that can help people to decide? So there are avenues that you will guide people that how to save money, how to save time, how to engage more people, how to attract more people. So how to reach more people, these kind of a thing. And then with this perspective, develop your products. So think about that. You need to reach people, you need to reduce time, you need to increase profitability, you need to increase visibility. So these are the avenues that you want to do, but you want to do it within a less time, with less cost, with good technology, with AI, IoT. So use it strategically. Develop something which will help them to do all these things. Generally people says that people buy or prefer things which can help them to short time, to engage with people, to make it, to be in relationship, to sell it something. So this is where the meat is. And if you can so my recommendation is write down or list down or find out that what are the top 10 best utilizations of AI. Okay, which problems I can solve with AI. So think about these things. Which industries are going to adopt AI in a faster way? What are the common problems that ABC industry is going to solve through AI? So now
I gave you questions, find the answers, build a product, and give me some percentage. That's how it works. Okay, Ovesh, is there any question? I answered the first question. What was the second question, by the way, Ovesh? The second question was difference between manage change and manage complexity. Okay. You see, generally change means either you got some new information, you got some new requirement, or the previous work that you were doing had some serious issues that you want to correct. So this is a change. Change means performing corrective action, performing preventive action, repairing the defects or doing something new. That's a change. So change is all about that, how you are aligning your product, how you are refining your product, how you are removing the bugs and fixes. But when you say complexity could, one factor of complexity is scope. The other factor of complexity of the people that who are going to use, the people who are going to recommend, the people who are going to market. The another part of the complexity is the politics, the power, the difference of opinion, the difference of expectation. So how you are engaging them. So complexity, one element of a complexity is scope, is change, but other elements are very important. Let's suppose if you want to go beyond boundaries, if you want, do you want to be a local product or a global product, or you do the local product or a national product or a global product. So basically, if you are saying you are a local product, you have less complexity. Becoming a national product has some high complexity, and becoming a global product, the very high complexity. You see, so complexity is not in terms of the scope. Complexity is also in terms of the way you scaling up yourself. You are increasing the width or breadth of your product, and that you need to manage. And then another thing is complexity is how you are dealing with your competitors. And to be very honest, it's not just your current competitors. The biggest art that I learned in a very hard way is, the biggest art is how you are going to compete with your current competitors and your future competitors, those who don't exist now but will exist in future. So your continuity, your future depends upon this thing, how you are going to compete with current competitors and future competitors. That's where complexity is. And you cannot say it's a change, it's a different paradigm. So that's why, as a startup entrepreneur, as a startup project manager, you need to start from these perspective too. You need to add this angle for also. And if you're not adding this angle, it's going to impact you in a big way. So now my next slide is, and I should say is the last slide of my topic, is whenever we talk about project, we talk about monitoring and controlling, right? One angle of a project is that what we are going to do, the plan, the things. The second angle is just do it, execute it. And then the third thing is, are we executing as per plan? So this is what the main part is. This is what you need to do. The biggest issue with the startup entrepreneur, the biggest issue with CEOs, and the biggest issue of startup project manager is their self accountability. The very idea of entrepreneur is you are not accountable to someone else. And this is where the problem is. When you start thinking that you are not accountable, the same day you start losing it. But when you start making yourself accountable, either to you, either to your series ABC donors, funders, or the board, or or your employees, then you start changing things. So basically, when you're talking about monitoring and controlling, when you're looking at the things from the perspective of how you are going to see things, then I would say, don't just monitor the project development progress, don't just monitor the implementation progress, you also need to monitor the adoption. So generally when people talk about project progress report, they say we have completed 50% of the project, or we have spent X much money in the project. So generally we assess the project from the perspective of time and cost. But I say, why don't you add another element, that how many stakeholders or how many users are adopting your product, how many users are giving you feedback. So basically, in my perspective, when you are looking at your product, if you are not showing the number of users, if you are not showing their feedback, if you are not tracking their utilization, if you are not tracking their utilization trend, daily integration, or maybe daily usage or weekly usage, whatever your product is, so it means you are losing in a big way. So what I see is that
when I say how you measure your project progress, what they say is it's working fine, it has features, and then if you remember, I said, design the hybrid life cycle. Or maybe people say my first MVP is this, and my second MVP is this, or my first release is this, and my second or third release is this. But what they are missing is they are actually measuring release after release the product. They are measuring the features they are adding, and that's the wrong concept. And that's where they are losing the point. The major point is how many issues you resolve from the perspective of customer adoption, how many customers are using it, and then how many customers are engaged with your product. So if you are not monitoring the adoption, and if you are only monitoring the progress of a project through the perspective of the technical abilities of the project, then it means you are going to do it in a big way, and then you are going to lose it. And especially when you talk about that you are getting Series A funding, Series B funding, Series C funding, what they want, why they fund you A, B, C? Because they want you to sell it in a big way, because they know that your product is already doing good with with that much number of people. But they are giving you more fund. Mainly, they are not giving you more fund to make your product beautiful. They are giving you more fund to sell it to more people, because that's how they will earn money. That's how they will get back the value of their value. So if you are able to sell it to more people, that is why they gave you the money. So if you are not monitoring the adoption of your product, adoption of your use, your service, then you're not going to get results. So for me, when I do training, when I do services, I see how many people are working on it, how many people are going to pass out, how many people are getting failed, and how many people are actually going for the exam. So I do measure all these things. It's not that how well I teach in my 4-5 day course. Generally when people talk about their success criteria, they measure them that how well they did in these 4 days. It's an act over 4 days, but for me it's not an act over 4 days. It is an ongoing impact, because you see, 70% of my sale does not comes through my superior sales guys. It comes from the feedback of my pupil. And to get this feedback, to get these raving fans, I need to work hard in terms of after the training, in terms of after they purchase my product, after they use my product, after they got the value from my product. So this is very important for you as a as a startup project manager. You need to add this thing into your status review document. You need to add this thing into your presentation, that we started with this number of features and this number of products. And then if I'm going to add one new feature, how many people are going to use it, what they are going to use with this. So this is very important. So if you are not monitoring the adoption of your product, then then again you're not getting the right value that you want. So basically, I used to say, people think that we develop a product and everybody uses it. I call it spray and pray. So you are basically developing a product and throwing it to the wall, and then you are praying that somebody will buy, and lots of people will buy, and one day million people will buy, and you will become a millionaire, a billionaire. And it's not going to work like that way. If it's going to work like that way, it would have worked for lots of people, but it did not work for these people. So basically, how you can make it that to happen, you need to make it happen by monitoring the adoption. If you want that maximum people use your product, use your service, and they talk about to others, then you need to monitor your adoption. This is the gain point. Is, you see, when we talk about monitoring, there is a 5A model. Number one model, first step says aware, that people got to know that you are also selling something. So people are aware of your product, service, number one. Number two, you can appeal them. So they got to know that you are doing this product, but are you able to appeal them? So awareness, providing awareness that you have this product, you are also selling this product, is just one part of the piece. The other piece is, are you appealing them? If you are appealing them, very good. But now the third point is, you are saying you are very good. You appeal with catchy words, flowery words, and you say, my product does this, it will help you this way, and whatnot. But now the third piece comes in. They are going to ask from someone. Oh my God. If your customers are going to ask someone before purchasing, but you don't know, and you are not targeting them to whom they should ask. You see, you need to target your future customers to ask from your existing customers. That is the art. That's how you generate the feedback. That's a critical thing. And that can only and only be possible if you are monitoring the adoption. You see, what are the 5 A's of marketing? Aware,
appeal, ask, act, advocate, right? So you made people aware of your product. You are appealing them that you have a very unique product. But if I want to buy from your product, everybody is saying they're great. So you are another great person, or you have another great product. But the point is, to whom I should ask that your product is great? I will ask from the ones who are already using it, those who are already getting the value from it. So now tell me, do you want to develop the full product and identify the people and then run it? It will take long years. Why don't you build it during the development? That's how the thing works. That's how you're going to get the result of your project and your product. That's how it works. So my experience, my research, my global thing is, please monitor the adoption of your product with users. That's how the whole thing works. So that's all from my side, I believe. As I said in the earlier, I don't run slides. If I have slides, these are billboard slides. So I believe you, and I try to be more interactive, and I try to give you more input. Still, if you have, input, these are my email address, Facebook, Twitter handle. But Asfar, I'm up for as many questions as you guys can ask, and your feedback. नहीं, जबरदस्त. So Ajmal Hussain, isn't it more profitable that we make a blend of adoption with adaptation? Sorry. You see, you got the point. Yes, why not? That's why I said design your hybrid life cycle. Make it part of it. That's it. That's how it works. Wonderful, great. Any other question as well? I think so. ये वाला तो हो चुका है. Multi-dimensional channels पे बात हो गई है. Multi-dimensional team पे बात हो गई है, बिल्कुल. That's we talking about multi-dimensional team. So thank you. We are like 5 minutes away from the closing time. If you have any tips for startups and for young businesses, even मेरे ख्याल से तो I think so the classical businesses will also start like startups, या जो अभी शुरू कर रहे हैं उनका भी बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम बहुत सारी चीजों को दोबारा rebuild करना है. So any tips for rebuilding companies, rebuilding? See, there are two types of startups. One is startups that is being done by young kids, and the other startups are done by the professional senior entrepreneurs. So basically, they both have different needs. And another important thing is, as you rightly said, as traditional organizations are looking to adopt this startup model within their organization. But the problem is, we call it ambidextry. Ambidextry means you have to manage your current as well as you need to work on your future. So it's a double-edged sword. So as entrepreneurs or young startup, what you can do is, and there is an opportunity for you right now, rather than building something new and going throughout the overall stage, why don't you go and become a startup engine of an established organization? The biggest problem right now is, every organization is thinking about digital transformation, and 90%, I just read somewhere that 90% of the investment on digital transformation is failed because, either the one reason is they don't know how to do it, number one. Number two, because they are doing it in a wrong way. And sometimes what lots of companies are doing it, like I see also here in Pakistan and also in in some of the Western examples, they are developing their startup in Silicon Valley and asking them to build some new great product that can change their organization, like a telecom company, like a bank, or like a manufacturing company. The point is that one of the author, I think his last name is Gupta, it said it's like that you are trying to turn the ship with a speedboat. So basically, there's a huge ship that's already running, that's already sailing, and now you say that we want to become a startup culture. So running a ship and running a startup is a different thing. And what you do is you are trying to adopt or basically add a speedboat or a small ship, and you're trying to turn the whole big ship with that speedboat, and it's not going to work. So
It's you need to work on the cultural aspects too. I'm working for one of the government organizations also, especially in the defense sector. So one of the biggest challenge for me is to inculcate the startup mindset to them. So I come up with a sentence which is not mine, but I read somewhere. It says you need to do the innovation within a boundary. So you have a boundary, you have a culture, you have a processes, and you have people who were successful in the past, and they don't want to listen that your product, your idea, your future will make them successful again. But the point is, they need to learn this thing. They need to adopt it. How you are going to sell your idea, sell your product, and to them, sometimes becoming and starting your own company is difficult than becoming an engine of another company and getting value out of it. So you need to look into it. It's not necessary that you always go for it, because there's a very book that says either you build to run or you build to sell. So sometimes, or maybe many of you are not going to build a product to run it. Ideally everybody wants to run your own company, but please also think that if you build it and sell it, what it will be. Think of a WhatsApp, and you will enjoy the whole thing. So this is all from my side. This is all my experience. I try to zip it up in a time and give you my 2 cents that how it should work for you. नहीं जबरदस्त. Thank you so much असदुल्ला साहब. It was a wonderful session. बहुत मजा आया, बहुत अच्छी learning हुई हम सबके लिए. और यहाँ पे even people have actually recommending follow-up sessions as well. Okay. Some are saying on product management, while others are on digital transformation. So जबरदस्त. So we are wrapping up. Thank you. और मेरे लिए आज का शायद सबसे ज़्यादा जो मेरे भी आपको पता है वो मेरे भी ज़रा दिल के करीब है. जो लोग कहते हैं कि भाई ये ड्रॉप आउट्स और इसकी बात होती रहती है, बट जो हार्ड वर्क करके अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के अपना टाइम लगा के जो मेहनत करके कंपनीज बनाते हैं या उसका हिस्सा होते हैं उस बिल्डअप का, उस सक्सेस का, उनसे भी हमें सीखना चाहिए. देयर आर like you mentioned, there are thousands and thousands of success stories coming out of good universities or even universities, people who have done their hard work. उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते. हमें अपनी डायरेक्शन अच्छी रखनी चाहिए ऑफ फॉलोइंग थिंग्स जो कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे आके सक्सेस होती है, जो कि एक हार्ड वर्क है, रादर देन जो वन हिट वंडर्स होते हैं, हम उनको देख के बस हम कहें कि यार वी वुड लाइक टू बी द नेक्स्ट वन. तो मेरे लिए हाईलाइट था. पूरी टॉक ही जबरदस्त थी, इंगेजिंग थी. देयर आर स्टिल पीपल हु आर रिकमेंडिंग थिंग्स. तो ये पता ही नहीं चला 2 hours कैसे गुजरे, बट वी विल रैप इट अप. Thank you once again, and we would love to have you, inshallah, once we are open with the physical facility भी, तो हम वहाँ पे भी inshallah session कराएंगे और NIC live में भी continue रखेंगे. Thank you, Asad साहब. So that's about it. Thank you everyone for joining us. Allah. Thank you guys. Take care. Bye bye.